I audible? Please confirm whether I'm audible or not. Yes, I'm audible. Thank you. So this is the second session of ESM for CFA level 2. I think आप लोग में से बहुत जन का रिजल्ट भी निकला होगा. Congratulations to all those who have passed. In the first session of ESM, there was a 2.5 hour class on valuation. Arsh Jain is saying that my voice is not clear. Others, please confirm if the voice is clear or not. Arsh Jain is saying that my voice is not clear. Voice is breaking a little bit. Let's check our internet. 1 second. Checking. The reason I think please keep on confirming whether voice का clarity आया कि नहीं आया. Saying that last class we did valuation. Okay, BSM 1. And this class we want to get into the portfolio management process. The fact that ideas are generated, then all the ideas के ऊपर we cannot put our effort because some of the ideas may not have what it requires to mint money. So therefore, to get into idea sniffing, sniff जैसे dogs करते हैं ना, तो वैसे we sniff that yes काम का है कि नहीं है, and then we obviously get into deep due diligence. A session on idea generation, idea sniffing, wonderful session. A lot of examples that we have thought about, and he has a lot of experience in terms of carrying this out in his own equity research and portfolio management process at his family office. So, Uditya, it's all over to you. My voice is seeming to be soft, but I hope your voice would be prominent and there will be no complaints. Let's continue. Okay, good evening, everyone. Please confirm once if my voice is audible. Please confirm whether my voice is audible. Okay, great. Very good, very good. So, to begin with, all who have cleared their CFA level 2 exam, right? So, congratulations, a big round of applause from my side, first of all, because it is really a big deal, okay? For those जिनका basically level 2 हुआ नहीं है अभी तक, right? You are maybe planning to appear for level 2 a little later. So all the best for that. And if there are some people who were unfortunate, so थोड़ा लगे रहो, it will get cracked down. Okay, I believe all of you have attended the last session. Please confirm once. सबने last session attend किया था क्या? Great, very good. ठीक है. So this session, this is not going to be more on the Excel part जहां पर मैं एक एक करके data fill up करूंगा, because honestly guys, you people have seen enough of Wise Sheet, enough of Screener.in, and enough of me filling the stuff. This session I'm going to be explaining to you what exactly we do, but again it will be at a pretty broad level. ठीक है. So I'll carry the session in 3 parts mostly, and it is going to be a pretty short session. ठीक है, जितना हो सके ultimately I'll be able to cover that much only. ठीक है. So we will first start with understanding the whole thought process, the whole framework कि इन्वेस्टिंग जो होता है, इन्वेस्टिंग, नाउ बी इट फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और बी इट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव, जो इन्वेस्टिंग होता है उसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हाट आर द टिपिकल स्टेप्स. सो आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू 6 स्टेप्स दैट वी फॉलो इन आवर इंस्टीट्यूशन. बाय साइड में दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी फॉलो. थोड़ा बहुत अब स्टेप्स जो है, some people might call it have a different name, some people might see different, but the core philosophy remains the same. We'll see investing exactly karte kaise. One. Second, then we will get into one part of that particular step, deep dive karenge into something called idea generation. कि इन्वेस्टमेंट का जो मल्टीपल आइडियाज है, ठीक है, आइडिया कि स्टॉक, कौन सा स्टॉक में जाना चाहिए, कौन सा स्टॉक को देखना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसा यूनिवर्स है दैट इज नेवर एंडिंग, राइट? यू हैव सो मेनी नंबर ऑफ कंपनीज आउट देयर वेयर यू कैन इन्वेस्ट. सो
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका आइडिया जो जनरेशन का प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, सो दैट आप मोर और लेस आइडियाज जनरेट कर पाओ, कंपनीज आपके पास आए, यू कैन स्टडी, यू कैन मे बी पुट इन सम वैल्यूएशंस एंड यू कैन मे बी इन्वेस्ट, ठीक है। आइडिया जनरेशन इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन। द थर्ड डिस्कशन विल बी ऑन आइडिया स्निफिंग, ठीक है, कि बेसिकली एक टिपिकल ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस क्या होता है कि इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स एंड इवन एट टाइम्स ईयर्स, राइट, करीब साल साल भी लग जाता है एक एक आइडिया पे काम करने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन समथिंग विच इज रियली वर्थ स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन। आप सोच के देखो ना, थिंक अबाउट इट, इफ देर इज अ पर्टिकुलर कंपनी दैट यू आर रिसर्चिंग ऑन, ठीक है, अब आपको मैंने इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको अगर लिंक्डइन पे उसका वैल्यूएशन एंड ये सब कुछ बना के पोस्ट डालना है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। बट सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट, यू आर वर्किंग ऑन द बाय साइड, यू हैव टू कम अप विद एन आइडिया दैट यू विल शेयर विथ योर सीनियर मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इतना टाइम देने के बाद भी आप क्या देख रहे हो, एक्चुअली वो आइडिया में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। सो व्हाट आर द टिपिकल फ्रेमवर्क्स इन विच वी कैन रिजेक्ट अ पर्टिकुलर आइडिया एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। एंड अगर लास्ट की तरफ थोड़ा बहुत टाइम मिले, सो आई काइंड ऑफ डिस्कस, बिकॉज आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि यू नो कौन कॉल को कैसे रीड करते हैं एंड ऑल, तो आई जस्ट डिस्कस थोड़ा सा दैट एज वेल, ठीक है। सो बताओ, शall we start? Shall we start? Great, great, चलो, okay, just confirm whether my screen is visible. Is my screen visible? Is my screen visible, guys? Okay, great, ठीक है। So I'm starting the stuff, idea generation and sniffing. Let's understand कि basically जो investment process है, that can be broken down into 6 steps. Now these steps are something that I have broken down from my end. आप इसको 7 कर सकते हो, थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, but this is what I am comfortable with pretty much. So we start with generating ideas, ठीक है। पहले आइडिया का जनरेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल मे बी आप स्क्रीनिंग से आइडिया जनरेट कर रहे हो, आप कोई टेक्निकल चार्ट से आइडिया जनरेट कर रहे हो, फॉर बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो आइडिया जनरेट होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर मैंडेट, right? I'll talk about the frameworks, but it should be based on mandate. Now for example, my mandate in my own company, my mandate is not to generate ideas using technical charts. We are purely based, we use technicals to develop certain insights, but idea generation mein we don't use technicals. We have certain fundamental mandates. Maybe your mandate is you would want to stay in the mid cap sector, right? So you define that mid cap sector. Is it suppose मैंने define किया 5 companies जिनका market cap is greater than 5,000 crores and less than 30,000 crores. 30,000 करोड़ के ऊपर जैसे ही मैं गया तो वो लार्ज कैप का यूनिवर्स हो गया। एंड सपोज 5,000 करोड़ से 1,000 करोड़ जो है वो पूरा यूनिवर्स जो है दैट इज द स्मॉल कैप यूनिवर्स। 1,000 करोड़ के नीचे आई कैन कॉल इट माइक्रो कैप। तो आपका मैंडेट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग जहां पर आपको देखना पड़ेगा कि मेरा मैंडेट क्या है। बेस्ड ऑन दैट आई विल स्टार्ट जनरेटिंग आइडियाज। once you're done with generating ideas, you start with idea sniffing, ठीक है। सो इट इज बेसिकली जस्ट अ क्विक फिल और किल टेस्ट टू सी कि क्या आइडिया पे अपने को ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए या नहीं। ये करते करते करीब 3 आवर्स लग जाता है। अगेन वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम एग्जैक्टली जहां पर अपने को चाहिए होता है टाइम स्पेंड करना। अंडरस्टैंडिंग? सो आई जस्ट गिव यू अ ड्रॉ पैरेलल। व्हेन आई वाज इन माय बीकॉम का टाइम, ठीक है, आई वाज डूइंग सीएफए ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वहां पर I was studying BCom very diligently, but somebody came and told me that the scope in CFA is better than the scope in BCom. So अगर आपको time तो limited है 24 hours, if you want to study for CFA. So that's exactly what we are talking about. तो आइडिया जनरेट हो गया, आइडिया स्निफ करके आई कम टू अ कंक्लूजन whether I would want to kill that idea, ठीक है, कि हटाओ इसको यार। So we are trying to classify ideas into something which is bad and something which is not bad, ठीक है, bad and not bad में classify करते हैं। So how fast can I do it? Can I automate this process? ठीक है। So
देन सपोज स्निफिंग के बाद मेरे को क्या समझ में आया कि यार अब इस आइडिया पे अपने ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं। सपोज ऑल द चेकलिस्ट पैरामीटर्स स्निफिंग से मेरे को समझ में आया, हाँ ठीक है, फंडामेंटली दीज दिस कंपनी चेक्स दीज पैरामीटर्स। सो देन वी गो टू द ड्यू डिलीजेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यू डिलीजेंस, अपने पास दो ऑप्शन है, वन इज अ क्विक डाइव एंड सेकेंड इज द अ डीप डाइव। क्विक डाइव में क्या होता है ना, आपका जो भी प्रोसेस है टू डू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन सपोज द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ऑन सपोज द मार्जिन ट्रेजेक्टरी ऑफ द कंपनी, on suppose the capital intensity of the company, on suppose the dividend distribution policy of the company, on suppose the terminal value perception, ठीक है, whatever your process is, आपको टाइम बाउंड कर दिया मैंने, ठीक है, टाइम बाउंड कर दिया। सपोज 1 वीक, आपके पास एक ही हफ्ता है, इन दैट 1 वीक यू डू वट एवर क्विक डाइव यू कैन टेक, ठीक है ना। सो सपोज आपने क्या किया, यू स्टार्टेड विथ एनालाइजिंग द कंपनीज फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स के बेसिस पे यू कंक्लूडेड दैट यस दिस कंपनी इज ग्रेट, ठीक है, फंडामेंटली दिस कंपनी इज साउंड एंड इट हैज गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप, ठीक है, कि सपोज कंपनी इज डूइंग मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स, जिस प्रोजेक्ट में सपोज बहुत स्कोप है, द कंपनी कैन जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इज देयर एंड अकॉर्डिंगली मार्जिन्स कैन एक्सपैंड। एंड एज आई हैड मेंशन्ड कि रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स एंड मल्टीपल एक्सपेंशन, ये तीन चीजों से ही आपका पूरा स्टॉक मार्केट चलता है, ठीक है। मार्जिन्स एक्सपैंड कर गया and maybe the company going forward would announce certain dividends, whatever the case may be, ठीक है। so बेस्ड ऑन ऑल दैट आपके पास 3 ही घंटा है, ठीक है, तीन सॉरी एक ही हफ्ता है। इन दैट 1 वीक यू कीप ऑन टेकिंग योर नोट्स, यू कीप ऑन डूइंग योर एनालिसिस, आप मॉडलिंग करो, चेक ऑन द फंडामेंटल्स, देन चेक करो कि एक्सपेक्टेशंस क्या है इस कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड, वेयर कैन इट रीच, देन यू चेक वेदर एस्टिमेट्स जो है, एस्टिमेट्स जो कि फंडामेंटल्स में बिल्ट अप है, प्राइस में बिल्ट अप है, क्या वो डिफर करता है आपके एस्टिमेट से, इज इट डिफरिंग फ्रॉम योर एस्टिमेट्स। सो फंडामेंटल्स, एक्सपेक्टेशंस, एस्टिमेट्स एंड फाइनली यू चेक की वैल्यूएशन क्या है कंपनी का। जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग, ऑल द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड all we did starting from level 1 and all that comes under this entire paradigm, ठीक है। आइडिया, ड्यू डिलीजेंस, सपोज जनरेशन, स्निफिंग एंड ड्यू डिलीजेंस, ये तीनों के बाद आई कंक्लूडेड दैट यस दिस इज अ गुड आइडिया, यस दिस इज अ गुड कंपनी and we do have a good valuation where it can be acted upon. Then what you need to do is you need to communicate the same. Now communication किसको करोगे, your senior obviously the portfolio manager, but if I am the portfolio manager मैं क्या करूंगा, मैं बस इसको thesis करके document करके लिख दूंगा। So the next step is obviously thesis construction, कि आप कैसे thesis, suppose my mandate does not allow me to go शॉर्ट, ठीक है, आई कैन नॉट गो शॉर्ट, मेरे को क्लियर कट बोला गया है भाई तुम शॉर्ट का नहीं सोचेगा, वी आर अ लॉन्ग ओनली फंड, तो हम लोग हमेशा लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से ही सोचेंगे, अंडरस्टैंडिंग। सो वी आर अ लॉन्ग ओनली फंड but we can wear a short hat. What I'm talking about is there is something called an antithesis, ठीक है। एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आज मेरा थीसिस कुछ है, थीसिस में व्हाट आई एम डूइंग, ये जो मैंने पूरा काम किया ना यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस में, आई एम बेसिकली पुटिंग दिस इंटायर थिंग इनटू 2-3 वर्ड्स की बेसिकली इंग्लिश में बताओ, ठीक है, इंग्लिश में या फिर ऑब्वियसली इन योर ओन लैंग्वेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स नहीं। टेल मी, गिव इट टू मी इन प्लेन इंग्लिश, व्हाट आर द अल्फा ड्राइवर्स, ये जो कंपनी है कैटलिस्ट क्या है। सपोज वी हैव अ 3 year horizon, if you remember the last class we had discussed कि valuation when we concluded ना, then we were discussing कि अगर मेरा जो alpha है, ठीक है, mispricing है, वो दूर होगा within 3 years, so we were getting a return of somewhere around 15-16%। बट जैसे ही अपने उसको 1 साल के टाइम होराइजन में देख रहे थे ना, तो मैं क्या बेट कर रहा हूं कि 1 साल में ही कंपनी का मिसप्राइसिंग दूर हो जाएगा, सो द रिटर्न वाज हायर। इफ यू रिमेंबर द लास्ट क्लास वी डिड दिस, रिटर्न वाज हायर, ठीक है। तो टाइम होराइजन इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। So within that time horizon, what are my catalysts, what are my alpha, what needs to happen so that the needle moves, right? So this is simply what we are talking about, and at the same time even here antithesis का basic मतलब क्या होता है कि how माने हाउ कैन यू थिंक फ्रॉम अ शॉर्ट पर्सपेक्टिव, कि अगर मेरे को ये जो आइडिया है ना, मेरे को अगर इसको किल करना है, इफ आई वांट टू किल दिस आइडिया, देन व्हाट नीड्स टू हैपन, राइट।
So that is pretty much what we are talking about. So idea generation, sniffing, due diligence, thesis construction, yahan tak mera pura analysis and everything ho gaya. Then this comes execution and sizing. ये जो 4 स्टेप्स अपने डिस्कस किए ना, दिस जस्ट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस. ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का जस्ट 10% ही ये कंप्राइज करता है. पोजीशन साइजिंग जो है दैट comprises 90% of the value, right? This is even spoken by Stan Druckenmiller. Have you heard of him? Stan Druckenmiller, आप लोगों ने सुना है नाम Stan Druckenmiller? Have you heard of Stan Druckenmiller? Okay, okay, no worries, no worries. So have you heard of George Soros? जॉर्ज सोरोस का नाम सुना हुआ है? राइट. So Stanley Druckenmiller is the partner of George Soros and Soros Investment Fund का वही मेन पर्सन है. ठीक है, क्वांटम फंड जो है, he is the fund manager, he is an extraordinary investor. ठीक है. So Stan Druckenmiller का, in the words of Stan Druckenmiller, he says that की position sizing is actually 90% of the game. What I am talking about is, suppose I have 11 ideas. 11 ideas मेरे पास है. 11 आइडियाज में से 10 आइडिया मेरा गलत हो गया. ठीक है, 10 आइडियाज आई डिड दिस इंटायर थिंग रॉन्ग. मेरा जनरेशन भी गलत हो गया. सपोज स्निफ में भी मैंने गलती कर दिया. ड्यू डिलीजेंस में भी आई डिडंट कंसिडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स. I didn't even consider a proper thesis driver and all, but I do have 10 ideas. Think about it. 11 में से 10 आइडिया पे मैंने गलती कर दिया, लेकिन एक आइडिया जो है that is okay. I'm not saying it's great, it's okay, चलो. But what I did was, suppose I'm investing 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh karke into these 10 ideas, and 10 CR I am investing into that one correct idea. Are you understanding? When that idea gives me, suppose, तो मेरा downside क्या हो गया? वो जो सारा ideas है मेरे को loss तो 10 लाख का ही होगा, right? Loss मेरा जो है वो तो limited होगा to only 10 lakhs. गेन जो होगा, सपोज ये वाले में, इवन इफ इट जस्ट गिव्स मी 20% का रिटर्न, ठीक है, 20% का अपसाइड, राइट? सो 10 CR का 20% इज 2 CR, सीधा 2 करोड़ का मेरे को फायदा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पोजिशन साइजिंग इज 90% ऑफ द गेम. क्लियर है? क्लियर है? ग्रेट, 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 ग्रेट. Then obviously what we do is position sizing and execute अपने कर दिए. Then what we will do, we simply monitor the same. ठीक है, we have to keep a track on the key developments, we keep on updating the thesis. Suppose कुछ ऐसा factor आ गया in suppose a con call or in suppose a quarterly update or a particular key development which actually goes against my thesis. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, से फॉर एग्जांपल आई हैव अ 3 ईयर टाइम होराइजन. 3 साल का होराइजन में मेरे को आइडिया ढूंढना है, ऐसा कंपनी जो 3 साल में सुपर रिटर्न देगा. ठीक है, 3 साल मतलब बेसिकली 1 ईयर में अगर मेरा 4, इफ आई एम हैविंग बेसिकली 4 क्वार्टर्स, तो आई एम लुकिंग एट 12, 4 into 3, 12 अर्निंग स्प्रिंट्स. ठीक है, 12 अर्निंग्स साइकिल से मैं गुजरने वाला हूं, राइट? 12 अर्निंग साइकिल से मैं गुजरने वाला हूं. हर एक अर्निंग साइकिल में कंपनी सपोज पीपीटी प्रेजेंटेशन का दिखाएगा अपना अपडेट्स के लिए. हर एक अर्निंग साइकिल में कंपनी सपोज कॉन कॉल करेगा टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी. द रीजन आई एम स्टिल ट्रैकिंग दिस कंपनी इज बिकॉज आई एम ट्राइंग टू वैलिडेट. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू वैलिडेट द थीसिस. क्लियर है? कहीं पर भी अगर मेरे को दिखा कि मेरा थीसिस इज नॉट गेटिंग वैलिडेटेड, मेरा थीसिस के अगेंस्ट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, देन आई नीड टू गो बैक एंड डू द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस अगेन. ड्यू डिलीजेंस फिर से थीसिस का देखेंगे अगेन. अगर अपने को लगा कि नहीं एक्चुअली पूरा थीसिस ही ब्रेक हो गया है, सो वी वुड वांट टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया. बताओ, इज इट ओके? ग्रेट. So just stop this screen share over here and I would ask if somebody has a question. You can raise your hand. If anybody has a question, would want to speak, I'll just unmute that person and then अपने move on करेंगे to the next part.
Does anybody have a question? ओके ग्रेट, दैट मीन्स सबको मोर और लेस क्लियर हो रहा है. वेरी गुड. चलो वी मूव ऑन. ठीक है. नाउ दिस दिस थिंग कि आज अपने बात कर रहे हैं टू कोर रीजंस एज टू व्हाई आइडियाज एक्चुअली एग्जिस्ट इन द मार्केट. टेल मी समथिंग, अगर आप बोल रहे हो आइडिया मार्केट में एग्जिस्ट करता है, आइडिया मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी जो कि मे बी करेंटली मिसप्राइस्ड है, ठीक है. इफ द मिसप्राइसिंग गोज अवे वी विल मेक रिटर्न्स, यही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? What do you think? Are Indian markets efficient or are they inefficient? Are they efficient or are they inefficient? You don't need to tell me कि strong form efficiency है. Correct. The one word is simply inefficient. Indian markets are inefficient. ठीक है. तो अगर इंडियन मार्केट्स एफिशिएंट नहीं है, समवेयर बिटवीन लार्ज कैप्स मोस्टली एफिशिएंट, वेल टेक्निकली आई एम टॉकिंग अबाउट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, बट ठीक है, या एवरीबडी गॉट द सेम. Indian markets are inefficient. That means alpha opportunities are there. Okay, I'm not getting into the pillars of efficiency, but point is this. Now, for every single inefficiency that happens, other than the legal, regulatory, and etc. side, basically ideas form होते हैं because of either you can say mistakes, misfortune. मिस्टेक्स एंड मिसफॉर्च्यून, दीज आर द टू एम्स. मिस्टेक क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल somebody सोल्ड समथिंग जबकि उसको होल्ड करके रहना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल आज मैं बताता हूं, इफ आई एम एन एच एन आई एंड आई एम होल्डिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है. सपोज वो कंपनी थोड़ा बहुत से स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, और क्या हुआ कि बेसिकली मेरा नाम जो है वो फैला हुआ है थ्रू एंड थ्रू, दैट दिस पर्सन इज होल्डिंग दिस वन पर्टिकुलर स्टॉक, एंड सपोज बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक आई सोल्ड दैट वन पर्टिकुलर शेयर. तो इससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो लोग फॉलो करते हैं रिटेल, इवन दे स्टार्टेड सेलिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इससे क्या हुआ, देयर इज अ डाउनवर्ड मोमेंटम. बट कंपनी आई तो मेड अ मिस्टेक ना, तो जो लोग भी बेसिकली सेल किए दे मेड अ मिस्टेक, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज डाउन. अकॉर्डिंगली दिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर somebody else to pick that stock up. Clear? More or less something that everybody can agree upon. Perfect. मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या हो गया? मिसफॉर्च्यून का मतलब यही हो गया कि आज मैं सेल नहीं करना चाहता था. ओके, आई डिड नॉट वॉन्ट टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक, बट कंडीशंस वेर सो दैट आई हैड टू सेल. से फॉर एग्जाम्पल टुडे देर इज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, एंड दैट इन्वेस्टर इज मैनेजिंग मनी. ठीक है, से हेज फंड, एक हेज फंड मैंने करोड़ों मैनेज कर रहा है, एंड देर वॉज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एक एंकर इन्वेस्टर ने रिडेम्पशन का ऑर्डर मार दिया. somebody ordered for a redemption. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच उस पर्सन को उसका कैपिटल वापस करने के लिए तो आई हैव टू सेल, राइट? Second example, suppose today there is a particular index fund, and that index fund is holding and mimicking the Nifty 50 index. For example, एकदम simplest example का बात कर रहा हूं, Nifty 50 index. आज निफ्टी से अगर कोई भी स्टॉक नो लॉन्गर मीट्स निफ्टी का क्राइटेरिया एंड इट इज थ्रोन आउट ऑफ द निफ्टी, तो फोर्सफुली तो मेरे को वो सेल करना ही पड़ेगा ना एज एन इंडेक्स फंड मैनेजर, राइट? बिकॉज आई एम मिमिकिंग द इंडेक्स, आई एम फॉलोइंग द इंडेक्स. इंडेक्स से वो स्टॉक निकल गया बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड, मे बी कोई रेगुलेशन अपडेट हुआ, मे बी कोई क्राइटेरिया का अपडेट हुआ, मे बी ये स्टॉक एक क्राइटेरिया बस सेटिस्फाई नहीं कर पाया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसको निकाल दिया निफ्टी से. अंडरस्टैंडिंग? एंड सपोज आई हैव अ बिग पोजिशन ओवर देयर एज एन इंडेक्स फंड मैनेजर, तब तो फिर से पूरा एकदम क्रैश हो गया ना. अगेन दैट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी. डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया दो चीजें, मिस्टेक्स एंड मिसफॉर्च्यून्स? गुड, वेरी गुड.
दिस इज द माने दिस इज रादर वन ऑफ द मेजर रीजंस एज टू व्हाई क्रैशेस जो होता है ना, क्रैशेस, बिग वेव्स, फॉर एग्जांपल द 2007-8 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉर एग्जांपल द कोविड-19 क्राइसिस, ये सब क्रैशेस में क्या होता है, यू हैव अ लॉट ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड मिस्टेक्स, दोनों ही चीज आपके फेवर में कैरी आउट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि आपका अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा पाइल अप होते जाता है। Imagine what happens is during COVID-19, everybody was scared, right? Uncertainty was looming by and large. Everybody was scared, and as a result of which, फिर क्या हुआ? People wanted to protect their capital. There was a risk of environment, right? And people started taking n number of redemptions. जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, जो भी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो सब लोग एक शॉट में रिडेम्पशन मारे, as a result of which all the institutional investors, they had to sell almost everything that they were owning, right? And basically जो लोग मार्केट में भी नॉर्मल रिटेल लोग लगाए हुए थे रुपया, as a result of which they also made the mistake and they kept on selling. तो मिस्टेक मिसफॉर्च्यून दोनों ही आपके फेवर में रहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसी टाइम आपको सबसे ज्यादा आइडिया का पूल मिलता है। क्लियर? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, so now let's get to the meat and potato of the discussion, dimensional perspective. Now, before I even share the presentation, I just want to take a moment and talk about what is dimension level का thinking. दो type का thinking होता है, एक होता है systems thinking, एक होता है dimensional thinking. Systems thinking का क्या मतलब है? You are thinking in steps. Okay, so if this happens, then step one this, step two this, step three this. इस तरह से आप सोच रहे हो। डायमेंशनल पर्सपेक्टिव क्या है ना, आप मल्टी डिसिप्लिनरी का हैट प्ले कर रहे हो, यू आर थिंकिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। सो जो जो लोग एमबीए करते हैं, बेसिकली व्हेन यू गो एंड डू एन एमबीए, इफ यू डिसाइड टू गो फॉर इट, what happens is you will be given a particular case study. Okay, now whatever is your field of specialization, suppose your field of specialization is finance. Okay, now there is a problem, there is a case given. Over there you are thinking purely from a finance perspective and you are solving the same. Somebody else will think from a very different dimension, say for example environmental aspects, say for example somebody is thinking mostly from a legal aspect, understanding. तो ये तो multiple dimensions हो गया ना. The one who can master this dimensional thinking can go way beyond and way ahead in lives. So, when we talk about idea generation from a dimensional perspective, we are effectively looking at 5 dimensions altogether. The first dimension is this: pure quantitative screening. ठीक है, प्योर क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग, जहां पर अपने क्या कर रहे हैं, क्राइटेरियाज के बेसिस पे आइडिया को स्क्रीन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो मैंडेट है वो क्या है। इसमें लेट्स सी व्हाट ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट। वी कैन हैव समथिंग कॉल्ड मिसप्राइस्ड क्वालिटी। मिसप्राइस्ड क्वालिटी का मतलब क्या होता है? थिंक अबाउट इट। Have you ever heard of Charlie Munger saying this one thing, invert, always invert? एक मेंटल मॉडल चार्ली मंगर का हमेशा बना रहता है, दैट इज इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये सुना हुआ है कभी? सुना हुआ है इन्वर्जन प्रिंसिपल, चार्ली मंगर? ओके, ओके, नो वरीज। सो इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आज इफ यू आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनी प्रॉब्लम, सपोज यू वांट टू क्लियर योर सीएफए लेवल 3, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग what can I do to clear my CFA level 3, invert the question and say what all can I do to not clear CFA level 3. Instantly क्या होता है, you will start writing pointers, understand and avoid those things. For example, you didn't study, right? Suppose this is something also called pre-mortem thinking. एक होता है post-mortem, एक होता है pre-mortem. Pre-mortem में क्या होता है कि what are the things that can basically make me fail. ठीक है, डूइंग समथिंग कॉल्ड अ मेटा एनालिसिस, पहले से मैं देख रहा हूं कि क्या क्या चीजों की वजह से मेरा सीएफए लेवल 3 नहीं निकल सकता है, राइट? सो when we talk about idea generation, effectively what are we talking about? Are we talking about finding a place in the market where the market gets it right, or are we talking about finding the place where the market gets it wrong? Go ahead. क्या ढूंढ रहे हैं अपने? Wrong. Very good. Somebody else?
Wrong. Correct. 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 Very good. Very good. So we are effectively talking about a place जहां पर मार्केट गलत है एंड वी आर राइट. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओवरवेल्म का कोई बात नहीं है. दिस हैपेंस मार्केट में. बहुत सारे अंडरस्टैंड समथिंग यार. मार्केट में तो ह्यूमंस ही काम करते हैं ना. एंड ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टिवली आर टोटली बायस्ड people. They are not rational people. We are all biased. ठीक है. So instead of asking, let's apply inversion thinking over here. Instead of asking where the market gets it wrong, why not ask where the market gets it right? Now the moment I think about it, मेरे को दिमाग में क्या आता है? Large caps. ठीक है. मेरे को दिमाग में क्या आता है? से dividend paying matured companies, companies जिनका से revenue growth rate is almost similar to that of GDP. अंडरस्टैंडिंग कंपनीज जिनका लिक्विडिटी बहुत हाई है, कंपनीज फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स. अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली मेरे दिमाग में क्राइटेरियाज आ गए. सो आई कैन सिंपली स्क्रीन फॉर दीज आइडियाज. आई कैन सिंपली स्क्रीन फॉर दीज आइडियाज एंड मैं इसको एक वॉच लिस्ट में डाल दिया. जैसे ही देर इज समथिंग अनटुवर्ड्स हैपनिंग विद दीज आइडियाज, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मैं इमीडिएटली दैट बिकम्स माई ट्रिगर कि मैं अपना स्निफ टेस्ट जो है वो इस पे एक बार रन कर दूं टू सी वेदर देर इज समथिंग. ये जो मिसप्राइसिंग हुआ, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट मिसप्राइसिंग, एंड ये मिसप्राइसिंग कब तक दूर होगा. बताओ, क्लियर है ये वाला फ्रेमवर्क? गुड. गुड गुड. वेरी गुड. So one is mispriced quality. Second is obviously durable expectations and diamonds in the dust. So classic value and classic growth का strategy है. उसके बाद we have undervalued earnings potential, turnaround stories. And this is pretty much what we are betting on. Mean reversion. ठीक है. या तो अपने बेट कर रहे हैं मीन रिवर्जन के फेवर में, या फिर अपने बेट कर रहे हैं मीन रिवर्जन के अगेंस्ट में. What I'm talking about is, let's talk about durable expectations. When we talk about growth investing, ठीक है, growth investing इसका मतलब क्या होता है कि basically we are screening quantitatively for companies जिनका earnings growth rate, revenue growth rate, ठीक है, revenue growth rate, earnings growth rate has crossed a particular threshold. Okay, has crossed a particular threshold. Disregarding the multiple currently, कि थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया है बहुत से 20% रेवेन्यू ग्रोथ रेट एंड से 50% अर्निंग्स ग्रोथ रेट, इतना हाई हो गया है. यहां पर ना द क्लासिक थिंकिंग, द क्लासिक फ्रेमवर्क इज दैट ये जो ग्रोथ है ये ड्यूरेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल है नहीं. As a result of which there will be a mean reversion. We are betting exactly in reverse of that. We are screening for these companies and we are researching, we are doing our sniff, we are doing our due diligence and constructing our thesis, thinking that this one company or these 2-3 companies, ये companies का growth जो है ये durable रहेगा. They will keep on posting this and as a result of which क्या होगा, जो multiple है वो further re-rate होते होते expand करता जाएगा. Classic example is Trent. Okay, Trent is a classic example of this one particular thing, which is West Side Zudio wala jo, if you guys are aware. So Trent का business model क्या है? These are D2C retail that have physical footprints. तो इनका जो मॉडल होता है, मेंटल मॉडल इज दैट यू लुक एट कितना नंबर ऑफ स्टोर्स ये खोलते जा रहा है. The more the number of stores these guys keep on opening, the better it is. The more the expansion and all will happen. So way back in 2023 and 24 beginning, ट्रेंट में क्या हुआ था ना कि ट्रेंट में the number of stores, everybody on the street were saying that it has peaked, it has reached its peak. But then Zudio did something unimaginable. They just kept on increasing their number of stores. तो क्या होता है, if you understand वेस्ट साइड से अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हो, so the products are priced at a premium level. Zudio से if you go and want to purchase something, the products are pretty affordable. ठीक है. Zudio का प्लान क्या होता है, टीयर 2 सिटीज जो है, टीयर 2 सिटीज में they will keep on expanding their stores. Whereas वेस्ट साइड का काम क्या होता है, हम लोग प्रीमियम में ही रहेंगे, टीयर 1 सिटी में रहेंगे एंड यहां पर अपना स्ट्रेटेजी होगा लाइक फॉर लाइक, माने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है उसको अपने मेंटेन करेंगे. सो गिवन दैट नॉन प्रीमियम अफोर्डेबल प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी हायर, मार्जिन्स आर गोइंग टू सफर, राइट, क्योंकि सस्ता वाला चीज जो है वो ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है. यहां पर क्या होगा कि वेस्ट साइड जो है, वेस्ट साइड दैट विल बी द मार्जिन सेवियर एक तरह से. ठीक है.
So as a result of which Zudio's unimaginable growth had led Trent का valuation pricing अगर आप बात करो, so around 2000 it was when I first looked at Trent, 2500 most likely. Right now most likely it is trading at a 7000 rupee ऐसा कुछ, ठीक है, मैंने देखा नहीं है, but it has been a real multi-bagger. So that is pretty much what we are talking about, a bet against mean reversion. Similarly, इसका classic value का तो I don't need to give an example. We are starting our screen from the multiple. पहले वाले में क्या था, अपने मल्टीपल को उतना देख नहीं रहे थे until and unless we are doing a GARP, growth at a reasonable price. ठीक है, we were just screening based on the growth and all. ठीक है, यहां पर अपने क्या कर रहे हैं, we are talking about classic value investing, just talking about the multiple. कौन कौन सा कंपनीज ऐसा है जिनका मल्टीपल आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट्स इंडस्ट्री मीडियन, ठीक है, वहां से वी आर टॉकिंग अबाउट विच कंपनीज कैन मेक इट टिक. ठीक है, आई डोंट थिंक मेरे को इसका एग्जांपल देने का जरूरत है. टिपिकल वॉरेन बफे टाइप का इन्वेस्टिंग इज क्लासिक वैल्यू. बेन ग्राम, वॉरेन बफे इज क्लासिक वैल्यू. ये वाला जो है अंडर वैल्यूड अर्निंग्स पोटेंशियल, इसका बेसिक मतलब क्या होता है ना, कि कुछ पोटेंशियल है जो कि ठीक से प्राइस्ड इन नहीं हो रहा है, राइट कुछ पोटेंशियल है जो ठीक से प्राइस्ड इन नहीं हो रहा है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट, इसमें वेरी गुड एग्जांपल कैन बी कि फॉर एग्जांपल यू स्क्रीन्ड फॉर कंपनीज जिनका सपोज रेवेन्यू ग्रोथ रेट जो है दैट इज प्रीटी हाई. ठीक है, द रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज हाई एंड फ्रॉम अ डेकेडल पर्सपेक्टिव अगर आप देखो, माने 10 ईयर का रेवेन्यू सीएजीआर, 3 ईयर का रेवेन्यू सीएजीआर, 5 ईयर का रेवेन्यू सीएजीआर एंड लास्ट 1 ईयर का रेवेन्यू सीएजीआर, it has trended around 12, 15, 16% high, pretty high. That goes to show demand is there. अब डिमांड अगर कंपनी का है, सपोज ग्रॉस मार्जिन जो है वो काफी कमती है, 50% से नीचे, 40%, 30% ऐसा करके ग्रॉस मार्जिन है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग. रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. अगर मेरा ग्रोथ आ रहा है फ्रॉम द क्यू कंपोनेंट, क्वांटिटी से मेरा ग्रोथ आ रहा है बेसिकली, ठीक है, तो मेरा तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. लेकिन अगर मेरा ग्रोथ आ रहा है फ्रॉम प्राइस, वो मेरे डायरेक्ट मार्जिन को हिट करता है. ठीक है, तो अगर ग्रॉस मार्जिन मेरा कमती है, छोटा ग्रॉस मार्जिन है, सपोज मेंटेन्ड भी है या फिर थोड़ा सा गिरा हुआ है, बट द रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज प्रीटी हाई, दैट काइंड ऑफ जनरेट्स एन आइडिया फॉर मी कि क्या मैं इसका स्निफ टेस्ट करने के बाद इस पे ये रिसर्च कर सकता हूं कि कैन दिस कंपनी इंक्रीज इट्स प्राइस. मे बी प्राइसिंग उतना हाई नहीं है बिकॉज मे बी प्राइस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इलास्टिक, अ लॉट ऑफ कंपेटिटर्स आर देयर. ठीक है, मे बी रेगुलेटरी वाइज कंपनी प्राइसिंग को हाई नहीं कर सकता है, और मे बी सम अदर रीजंस आर देयर, बट मे बी देयर कैन बी वन मोर रीजन कि company deliberately is not hiking its price. It is waiting for a strategic opportunity. ये होता है तो द मोमेंट कंपनी इंक्रीजेस इट्स प्राइस, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरा जो ये है ना, मेरा जो मार्जिन है दैट एक्सपैंडेड, मल्टीपल री रेटेड. ठीक है, अंडर वैल्यूड अर्निंग्स पोटेंशियल. बताओ क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस? गुड, वेरी गुड. And turnaround stories, though I don't think I need to do something about it. I'll just show you once कि basically अपने क्या बोलना चाह रहे हैं. मैंने एक दो स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा अभी करके, स्क्रीनर पे किस तरह से बेसिक वे में अपने काम करते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट शो यू इट. Is everybody able to see my screen? Confirm this once. Is everybody able to see my screen? Great. So बेसिकली अपने क्या बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं सर टर्न अराउंड स्टॉक्स अपने को फाइंड आउट करना है. तो टिपिकल क्या हो सकता है, टर्न अराउंड का मतलब क्या है? टर्न अराउंड मींस कंपनी एकदम ही पूरा गिर गया है, लेकिन इट हैज द पोटेंशियल टू गो अप, इट हैज द पोटेंशियल टू टर्न अराउंड इट्स एवरीथिंग. सो पहला चीज मैं क्या देखूंगा, कंपनी गिर गया है. सो अगर मैं सिंपली बोलता हूं दैट द करंट प्राइस से इज लोअर देन इट्स ऑल टाइम हाई इनटू 0.3. ठीक है,
करंट प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई का 30% के भी नीचे है, एंड से नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में इट वाज नेगेटिव 0, देन से करंट ईयर में नेट प्रॉफिट इज पॉजिटिव, एंड से नेट प्रॉफिट लास्ट लेटेस्ट क्वार्टर में it is greater than 0, and net profit, sorry, 2 quarter में भी it is greater than 0, and net profit 3 quarter में भी it is greater than 0. ठीक है, What I'm talking about is that कंपनी का स्टॉक प्राइस पूरा ही क्रैश हो गया है, लेकिन 1 साल पहले नेट प्रॉफिट जो है वो पूरा नेगेटिव था, तो फंडामेंटली ही ऑब्वियसली कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रैश हुआ है, राइट? लेकिन बिजनेस में मोमेंटम जो है वो वापस आ रहा है। वो कहां पर आपको बिजनेस मोमेंटम दिख सकता है? इन द क्वार्टरली रिपोर्ट्स, क्वार्टरली प्रिंट्स में यू जनरली गेट टू सी द बिजनेस मोमेंटम। ठीक है, तो मैंने क्या स्क्रीन रन किया, लेटेस्ट क्वार्टर, 2 क्वार्टर पहले, 3 क्वार्टर पहले, 3 क्वार्टर से एटलीस्ट कंपनी का पॉजिटिव प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, एंड पूरा साल में भी आप टीटीएम करोगे तो भी पॉजिटिव प्रॉफिट आएगा, लेकिन लास्ट की तरफ से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी पूरा क्रैश है और कंपनी एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी गया हुआ है, राइट? सो इफ आई जस्ट रन दिस क्वेरी, सो आई एम फाइंडिंग अराउंड 8 कंपनीज। ठीक है, तो इससे मेरा बेसिकली फर्स्ट आइडिया जनरेशन होता है, देन आई कैन डू द स्निफिंग वाला पिक्चर एंड देन आई कैन सी वेदर इट कैन वारंट अ डीप डाइव और नॉट। बताओ, इज इट क्लियर? क्लियर? गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो वी गेट बैक, वी वर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवली ये वाला पोर्शन। तो यहां पर अपने क्लियर कट बेट कर रहे हैं कि मीन रिवर्जन के या तो फेवर में, सो दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये चारों चीजें, मिसप्राइस क्वालिटी, वैल्यू और अंडर वैल्यूड अर्निंग्स पोटेंशियल, टर्न अराउंड स्टोरीज, ये सारा अपने क्या बेट कर रहे हैं कि मीन रिवर्ट हो जाएगा एंड कंपनी ऊपर चला जाएगा। When we talk about the growth वाला thing, we are talking about mean reversion नहीं होगा and we are betting against mean reversion. The second perspective is thematic drill down। ठीक है, thematic drill down, this is a top down idea generation framework। यहां पर अपने क्या बोल रहे हैं, we are effectively talking either about a sub theme play। ठीक है, सब थीम प्ले मतलब एक पर्टिकुलर कोई थीम है, ब्रॉड थीम। ठीक है, एंड देन वी हैव सब थीम्स इन बिटवीन, आई विल शो दिस। सब थीम प्ले, we are either talking about a look-alike analysis, we have a capex play, we have a sectoral downturns। यहां पर अपने क्लियर कट बेट कर रहे हैं टेल विंड्स पे, यहां पर कोई टेल विंड आने वाला है। आई जस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि ये सब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैं अगर सब थीम प्ले का ही एग्जांपल लूं, सो वेरी इजी थिंग फॉर मी टू से ओवर हियर इज दैट कि जो अपना डेटा है, ठीक है, डेटा फैक्ट्रीज, that data factory has the requirement of setting up more and more data factories is huge going forward. So I had just read this thing. Yeah, this was a McKinsey report ka summary, right? Power demand from AI data centers in India could hit 50 TWH, ठीक है, a year by 2030, driven by rapid digital growth. Understanding, if you read this article you will get to understand something कि बेसिकली आज आज ठीक है ना, जो इंडिया में डेटा का डिमांड है, दैट डेटा का डिमांड इज स्टैंडिंग समवेयर एट 1.2 गीगावाट से 2024 में, एंड बाय 2030 इट इज गोइंग टू बी 4.5 गीगावाट, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 4 गुना होने वाला है डेटा का रिक्वायरमेंट। As a result of which data का consumption requirement is going to be very huge। तो this is a broad theme। ठीक है, सब थीम इसमें क्या हो सकता है? सब थीम इज यू नीड फैट, रिलायबल, हाई वोल्टेज पाइप्स। ठीक है, डेटा आपको ट्रांसमिशन के लिए यू वुड नीड समथिंग, द ग्रिड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बहुत हाई डिमांड होने वाला है ग्रिड टेक्नोलॉजीज का। तो दैट इज वन प्राइम रीजन एज टू वाई सब थीम इन्वेस्टिंग कैन वर्क। ठीक है ना, तो अपने सोच सकते हैं कंपनीज लाइक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कंपनी से स्मार्ट ग्रिड या ग्रिड टेक्नोलॉजीज में है. मे बी वी कैन टॉक अबाउट श्नाइडर इलेक्ट्रिक, मे बी वी कैन टॉक अबाउट कंपनीज लाइक अडानी का को एनर्जी एंड ऑल. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अपने क्या बात कर रहे हैं, वी हैव अ ब्रॉड थीम. ठीक है, दिस वन. एंड देन उसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू ट्रांसमिशन लाइंस, हाई वोल्टेज केबल्स एटसेट्रा, ये सारे चीजों में. तो दिस इज प्रीटी मच व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सब थीम इन्वेस्टिंग जो है दैट कैन दैट मे नॉट बी यू नो this complicated, that may be something very simple. So action construction equipment का decadal theme क्या है, इंडिया का growth story, right? तो construction is the broad theme that is playing out. But understand something, construction अगर होगा, इंडिया growth होगा, तो इंडिया का housing demand is going to come. हाउसिंग डिमांड अगर आएगा तो हाई राइजेस जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. हाई राइजेस अगर इंक्रीज करता है तो आपको टावर क्रेन का जरूरत पड़ेगा. टावर क्रेन का जरूरत अगर पड़ेगा तो इफ यू लुक एट द कंपनीज विच हैव अ टावर क्रेन इन इंडिया, ठीक है ना, तो एस हैज लाइक अ 63% मार्केट शेयर ऑफ टावर क्रेन्स. सो इट इज होल्डिंग अ वेरी हाई मार्केट शेयर एट अ वेरी ग्रोइंग मार्केट. अंडरस्टैंडिंग सब थीम इन्वेस्टिंग. So that is again one thing. ठीक है. Then maybe we can talk about something else as well कि इंडिया का growth story अगर इतना हाई होने वाला है, again it has to be driven by construction, it has to be driven by housing etc. तो construction companies they would generally want to have a mix of debt and equity for investing that much. अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी को डेट इक्विटी चाहिए तो डेट भी अगर जोर का चाहिए तो डेट का डिमांड इज गोइंग टू बी वेरी हाई. डेट का अगर डिमांड बहुत हाई होता है सो कंपनीज लाइक रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, दे आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज चंक ऑफ द बिजनेसेस. बिकॉज जिस कंपनी को डेट लेना है वर्सेस जिस कंपनी को डेट देना है, दोनों को ही तो रेटिंग करवाना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कंपनीज लाइक क्रिसिल, इकरा, केयर कैन बी गुड चॉइसेस. अंडरस्टैंडिंग? सो सब थीम इन्वेस्टिंग में दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू. इन सब थीम इन्वेस्टिंग what we try to do practically is we try to identify a broad theme. एक बहुत broad theme अपने identify करते हैं. एक बहुत broad theme अपने identify करते हैं and then we see कि sector जो है ना, sector market में क्या tailwind है. टेलविंड क्या इमर्ज कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर टेलविंड एक्सेलरेट कर रहा है, या फिर टेलविंड स्ट्रीमलाइन वे में प्ले आउट कर रहा है. ठीक है, बताओ, क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, ग्रेट. एंजॉइंग द सेशन? गुड. ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, लुकलाइक एनालिसिस. लुकलाइक एनालिसिस का मतलब क्या होता है? दिस इज अगेन जस्ट अ डायमेंशन. थिंक, पिक अप वन सेक्टर, एनी सेक्टर यूज है, ठीक है. उस सेक्टर में यू स्टडी द लीडर. लीडर को बहुत हाई माने डीपली स्टडी करो कि लीडर किस तरह से इमर्ज किया. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लार्सन एंड टुब्रो इज द लीडर, right? Larsen and Toubro is the leader. So you study what has typically been the evolution of Larsen and Toubro. Then similar sector में you look at a company which is showing something similar characteristics. तो क्या हुआ ना, आपके पास एक रेफरेंस आया कि बिकॉज ऑफ द टेलविंड्स इन द सेक्टर एंड बिकॉज ऑफ the company showing similar characteristics as that of a Larsen and Toubro, this company can be the next Larsen and Toubro. Understanding? That is pretty much what we are talking about. So I'll just share an example. So there is a company called Rail Vikas Nigam Limited. ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड. कंपनी का नाम सुनने में समझ में आ रहा होगा, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है. A typical difference between a government company in construction and a private company is bidding. बिडिंग का मतलब क्या होता है कि आज अगर सपोज गवर्नमेंट को एक हाईवे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ हाईवे, ठीक है, बिल्ड अ हाईवे, तो गवर्नमेंट क्या करता है, इट ऑफ आस्क्स फॉर बिड्स, कि बिड्स इनवाइट करना स्टार्ट कर देता है. प्राइवेट कंपनी लोग किसको प्रोजेक्ट चाहिए होगा, से फॉर एग्जाम्पल सीमेंस, एल&टी, ये लोग सब बिड करेंगे. बिड करने के बाद दे विल गेट द ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर जैसे ही इन लोगों को मिल जाएगा देन दे विल स्टार्ट एक्सिक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्सिक्यूट कर करके पीएनएल जो है, पीएनएल में रेवेन्यू बुक करेगा एंड उससे सारा मार्जिन एंड एवरीथिंग आएगा एंड उससे
आपका जो मल्टीपल है वो स्टैंड अप करेगा. दिस इज टिपिकली व्हाट द फ्लो इज. ठीक है. सोच के देखो गाइज एक चीज कि these companies, these construction companies, they are just crazy about orders because the first reason is that आज अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी खोला हुआ हूं, मैं तो बहुत रुपया इन्वेस्ट कर लिया ना. आई हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज सम. आई वांट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर वन. सेकंड, कंपनी को इन्वेस्टर लोग जो फंड किए हुए हैं वो सिर्फ ऑर्डर बुक को देखता है. ऑर्डर बुक को देखता है. अगर उसने देखा कि कंपनी का ऑर्डर ग्रोथ जो है वो स्लो हुआ है, ही में सिंपली सेल द शेयर्स एंड ही में गो अवे. एंड दैट कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. ठीक है. सो दे आर क्रेजी अबाउट ऑर्डर्स. तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक करना कि कौन कंपनी सिर्फ ऑर्डर 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 लेते जा रहा है और कौन कंपनी एक्सिक्यूशन भी ठीक ठाक से कर रहा है. बिकॉज अल्टीमेटली इफ अ कंपनी इज जनरेटिंग ऑर्डर्स आफ्टर ऑर्डर्स, ठीक है, लेकिन वो एक्सिक्यूट करके अपने पीएनएल में एक तरह से वो दिखा ही नहीं पाया कि कितना रेवेन्यू, कितना मार्जिन एंड कितना क्या है, तो मतलब ही नहीं है ना. But when we talk about a typical government company like रेल विकास निगम लिमिटेड और से तीतागढ़ रेलवे, ये जो वंदे भारत का जो ट्रेन है उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है, दीज कंपनीज, इनका ऑर्डर का कोई बात नहीं है. दे आर सिंपली एक्सिक्यूटर्स. गवर्नमेंट उनको हैंड आउट कर देता है. दे डू नॉट बिड एट ऑल. ठीक है. एंड व्हाट दे डू इज दे जस्ट एक्सिक्यूट्स. नाउ हियर्स द कैच. आई विल जस्ट शो यू. ओके, गिव मी अ मिनट. या, here's the catch. I'm going to go to Screener and I'm going to type the name of the company. सीधा नीचे जाओगे, you will get to see the con call of the company, the earnings transcript. ये जो con call है ना, there is this person by the name of MP Singh, director of operations. इसका ये वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना. There has been some order inflows from civil engineering and electrical engineering. पूरा ही इंजीनियरिंग में फ्लो कर रहा है. टोटल ऑर्डर्स 1 माने बिड किया था और ऑर्डर मिला कंपनी को 1,000 crores and total contracts are now organized to 96 contracts. The residual value of contracts which we have won through open bidding, ठीक है, 60,500 crore का बिड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट. एंड जो इनका लेगेसी रेलवे प्रोजेक्ट्स है दैट अकाउंट्स फॉर 41,000 crores. डोंट यू थिंक कि टोटल ऑर्डर बुक जो है दैट इज 1 लाख समथिंग अराउंड 1 लाख crores, इसका मोर देन 50%, द टेक्निकल लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ मोस्ट, MOST, मोस्ट इज मोर देन 50%. तो कैन आई से मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम बिडिंग? Can I say most of the orders for this company are coming from bidding rather than a legacy, the legacy railway? बताओ. Very good. So most of the orders are coming from bidding. Company clear cut bid कर रहा है, right? Order book, again, see, order book is spread across various sectors, not only railway. We are also investing in highways, metros, etc. ठीक है. टेलीकॉम में जो अपना ये होता है, आपका टेलीकॉम में जो फाइबर कंस्ट्रक्शन होता है दैट, ठीक है, मेट्रो, हाईवे, पोर्ट एटसेट्रा, हर चीज में कंपनी जा रहा है इन कंस्ट्रक्शन. बट इफ यू जस्ट लुक एट कंपनी का डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, यहां से आपको ये पकड़ में आएगा नहीं. सी, it is engaged in the business of implementing various types of rail infrastructure assigned by Ministry of Railways. ठीक है. न्यू लाइंस, इलेक्ट्रिफिकेशन, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, कहीं पर कंस्ट्रक्शन, बिडिंग एटसेट्रा का कुछ बात नहीं है. दिस कंपनी इज अ स्मॉल कैप एक तरह से, नॉट अ स्मॉल कैप फ्रॉम मार्केट कैप पर्सपेक्टिव, बट इफ यू टॉक अबाउट लार्सन एंड टुब्रो, आई थिंक पियर्स में भी अब आ जाएगा, राइट? यू टॉक अबाउट लार्सन एंड टुब्रो, उसके सामने तो स्मॉल कैप ही है. अगर आपको इस कंपनी का बेसिक एनालिसिस भी करना है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम्स कंपनी का सेल जा सकता है इफ द कंपनी वांट्स टू गो अहेड एंड एक्सिक्यूट अ फुल स्केल ईपीसी बिजनेस. ठीक है. मार्जिन्स एक बार टिपिकली देख लो. द मार्जिन्स आर प्रिटी टाइट, राइट? 5-6% पे सीधा मार्जिन है, विच इज obviously half of what Larsen and Toubro is creating, but then again it is pretty decent, एकदम stable margin है, ठीक है ना? अगर इतना स्टेबल मार्जिन है एंड सपोज ऑपरेटिंग लेवरेज पूरा किक इन करता है बिकॉज ऑफ द कंपनी वेंचरिंग इनटू दीज काइंड ऑफ नीशेस, ठीक है ना,
तो एज अ रिजल्ट विथ सुपीरियर एक्सिक्यूशन, बिकॉज हिस्टोरिकली दिस कंपनी वाज इनटू एक्सिक्यूशन, इफ दिस हैपेंस, ठीक है, देन मार्जिन कैन ऑल्सो एक तरह से गो टू अ 14-15%। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ लुक अलाइक एनालिसिस। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लुक अलाइक। दीज टू थिंग्स आर वेरी सिंपल। केपेक्स प्ले का मतलब क्या होता है? यू स्क्रीन फॉर कंपनीज जिन लोगों ने केपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स रिसेंटली कंप्लीट किया है। ठीक है, केपेक्स रिसेंटली कंप्लीट किया है। केपेक्स का मतलब क्या होता है? कंपनी बेसिकली कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है अपना कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए। सपोज कंपनी एक पर्टिकुलर लैंड अक्वायर किया है, उसमें फैक्ट्री बैठाया है, दैट इज अ केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ हियर्स द प्रॉब्लम, द थिंग इज, रिसेंटली अगर कंपनी केपेक्स किया हुआ है तो मे बी कंपनी डेट लेकर के उतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। दैट मीन्स कंपनी का एसेट साइड फूला हुआ है। ठीक है, एसेट साइड इज प्रीटी हाई। दैट गोज टू शो कि कंपनी का नेक्स्ट ईयर, माने दिस ईयर, ये वाला जो ईयर है, रिसेंटली से लास्ट ईयर में केपेक्स कंप्लीट किया, इस ईयर में कंपनी का मेजर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट आने वाला है पीएनएल में, राइट? अगर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट पीएनएल में आता है, दैट मींस नेट प्रॉफिट जो है वो गिर जाएगा पूरा। नेट प्रॉफिट अगर गिर जाता है, दैट मींस आपका ईपीएस इज गोइंग टू गो डाउन। इफ ईपीएस गोज डाउन, मल्टीपल, इवन इफ इट डज नॉट डी रेट, इवन इफ द मल्टीपल होल्ड्स, द शेयर प्राइस गोज डाउन। ये देख करके जो रिटेल लोग होते हैं, जिनको एनालिसिस करना नहीं आता, वो दे विल डू इज दे विल स्टार्ट सेलिंग, राइट? अरे कंपनी का ईपीएस कमती आया है, चलो सेल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट कैन अगेन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि यार ऐसे कंपनीज को एक बार देखते हैं, स्क्रीन करते हैं, लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग दीज कंपनीज एंड लेट्स गो अहेड। सिमिलरली सेक्टोरल डाउनटर्न में क्या होता है कि सेक्टोरल डाउनटर्न में देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्टर जो कि आउट ऑफ फेवर है करेंटली, करेंटली आउट ऑफ फेवर है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहां पर अपने उस कंपनी को देखते हैं कि जो कंपनी सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है, मतलब गिरा है उतना भी नहीं गिरा है, देन यू कैन स्टडी दैट कंपनी, व्हेन द सेक्टर टर्न्स दिस कंपनी माइट गो अप। ठीक है, दिस इज प्रीटी मच व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बताओ, ये दोनों डायमेंशंस क्लियर है? अदर टू डायमेंशंस क्लियर? गुड। द थर्ड इज दिस, चेंज, केओस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें अपने बेट कर रहे हैं सिंप्लिसिटी पे। मार्केट नेवर एवर एवर प्राइसेस चेंज केओस कॉम्प्लेक्सिटी करेक्टली, कभी भी केओस कॉम्प्लेक्सिटी तो करेगा ही नहीं। चलो कोई कारण से मे बी चेंज को फिर भी, मैंने से मैनेजमेंट का कुछ चेंज हो गया और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इसको फिर भी थोड़ा बहुत ठीक से प्राइस कर देगा, ये दोनों को तो कभी करेगा ही नहीं केओस कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, गिव मी दिस आंसर, ये वाला आंसर मेरे को गाइस दो एक बार। कोई कंपनी में इफ द प्रोमोटर इज सेलिंग हिज स्टेक versus promoter buying his stake, which event do you think warrants a deeper attention? कौन सा इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली? कोई कंपनी जहां पर प्रोमोटर से स्टेक अपना बेच रहा है, या कंपनी जहां पर प्रोमोटर स्टेक खरीद रहा है? गो अहेड। ओके, हर्ष इज सेइंग बाय, कैलाश इज सेइंग सेल, ओके, somebody is saying buy, ठीक है। So I think I'll just ask Swagato to answer this. एक बार I'm going to unmute you, Swagato, once. ठीक है, आप एक बार आंसर करो, आपने जो बाई बोला, ठीक है, वो कौन से लॉजिक से बोला, क्यों आपने वो बाई बोला? ठीक है, स्वागतो, हाय स्वागतो। यस, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ बाई कौन से लॉजिक से बोला आपने? मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर प्रोमोटर्स अपना शेयर बाय कर रहे हैं तो यकीनन, मतलब एनालिस्ट हो या नॉर्मल पीपल हो, उनको, प्रोमोटर्स को, उनको ज्यादा नॉलेज है हमसे, तो उनको जरूर उसमें वैल्यू दिख रहा होगा, फ्यूचर में कुछ करने वाले होंगे या कुछ पता होगा, तभी बाय बाय कर रहे हैं। सेल में क्यों नहीं होगा ये? सेल में भी तो दिस आर्ग्यूमेंट इज सॉलिड ना, कि बेसिकली प्रोमोटर को ज्यादा नॉलेज है, प्रोमोटर को सपोज लग रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस गिरने वाला है, तो सेल में ये लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई होगा? एक्चुअली हो सकता है, लेकिन सेल में
सेल में भी हो सकता है, ओके, देखा जाए तो अदर रीजन भी रह सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है। अदर रीजन एज इन? एज इन उनको फंड रेज करना है, या फिर उनको उनको पर्सनल किसी लिटिगेशन की वजह से पैसे चाहिए, Now, this is और the डेट का। exact answer that I was wanting to hear. Very good, extremely good. Goes to show आपका clear cut maturity है. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. सो बेसिकली होता क्या है ना कि फॉर द सेल वाला जो पार्ट है उसका तो पर्सनल रीजंस भी हो सकता है ना. देर माइट बी पर्सनल रीजंस की लिक्विडिटी का मेरे को रिक्वायरमेंट है. राइट, सपोज मेरे को रिक्वायरमेंट है इमीडिएट लिक्विडिटी का. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं स्टेक अपना बेच रहा हूं. लेकिन जब बाई करता है वहां पर अपना खुद का रुपया फिर से मैं लगा करके उसको बाई कर रहा हूं. सो इट्स अ मेजरली इंपॉर्टेंट इवेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो स्क्रीनर डॉट इन में आप अगर जाओगे, अगर आप सिंपली ये वाला स्क्रीन डालोगे, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग्स, ठीक है ना, उसको अगर आप देखोगे कि कितना कितना प्रमोटर होल्डिंग बाई हुआ हुआ है, देन अगेन दैट कैन बी अ प्लेस टू डिग इन की डेवलपमेंट्स. ठीक है, क्लियर है? गुड, वेरी गुड. And this one, controversial narrative. I'll just share an example to for you guys to understand. How many of you are aware with the Hindenburg and Adani episode? Hindenburg and Adani episode कितने लोगों को पता है? Almost सबको पता है. Hindenburg Adani episode, I think it happened way back in 2000. Do you remember कब का बात कर रहे हैं अपने? 2022-3 का बात कर रहे हैं, राइट? कुछ ही साल पहले का बात है, एनीवे, सो डजंट मैटर. तो बेसिकली हिंडनबर्ग अडानी का जब पहला हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था ना, फ्रॉम 4,000 रुपीज शेयर प्राइस अडानी एंटरप्राइजेस, इट फेल डाउन टू 1,000, 1,200 ऐसा कुछ गिर गया था. बिकॉज ऑफ ऑल द रीजन, हिंडनबर्ग इज अ मेजर शॉर्ट सेलर. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि खुद का इन्वेस्टिंग करता है, ठीक है. तो he was very much interested in all that, and there was a big narrative as in how Adani is a complete chore. and अपना तो एक बेसिक वो होता ही है ना, somebody who is rich, तो अपने ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं कि यार ये बंदा खराब होगा, यार ये बंदा चोर होगा, यार ये बंदा माने एब्सोल्युटली ही हैज नो मोरल्स एंड एवरीथिंग इज रूथलेस, वरना उस पोजीशन में पहुंचा कैसे, ये जो टिपिकल नैरेटिव होता है अपना. So everybody was angry at Adani. Some people who were not angry at Adani, they invariably became angry at Adani, and Adani का enterprises का जो शेयर प्राइस है वो एकदम क्लियर कट डाउन हो गया था. तो ये जो मेरा दोस्त था ना, सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि यार तुम अडानी नहीं देख रहा है क्या? आई सेड नो, आई डोंट ट्रैक अडानी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ही सेड दैट भाई एक बार तेरे को एक चीज बोल रहा हूं, देख लियो. अडानी राइट नाउ अमिडस्ट ऑल दिस केओस, वो है किधर? वेयर इज ही? वो इंडिया में है नहीं, इतना मैं बोल सकता हूं. बट अडानी, वेयर लोकेशन जियोग्राफिकली वेयर इज ही, एंड वो कर क्या रहा है, ये दो चीज तुम देख ले. आई सर्च्ड अप, ठीक है, एंड आई सॉ ही वाज इन इजराइल. He was in Israel. He was about to deliver a particular port. I think Haifa was the name of that particular port. तो क्या हुआ? आफ्टर दैट आई डिड नॉट फॉलो, एंड ही सेड इफ यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, करके छोड़ दिया. कुछ दिनों के बाद, मैंने कुछ सालों के बाद, आई थिंक 1-2 years के बाद, आई सॉ, आई गेट अ नोटिफिकेशन दैट हिंडनबर्ग शट्स डाउन. हिंडनबर्ग शट्स डाउन. तो बीच में हुआ क्या, दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक आउट. अभी वो मैं बोलने ही नहीं वाला हूं, बिकॉज इट विल टेक द एंटायर सेशन. बट इफ यू थोड़ा सा नो अबाउट व्हाट इजराइल, माने व्हाट इजराइल जनरली डज, मोसाड का ऑपरेशंस, एंड देयर वाज वन स्पेसिफिक ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन जेपलिन. ठीक है, एक बार सर्च करना, आज जाकर के इस मैंने सोने से पहले एक बार सर्च करना व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन बिटवीन. यार हिंडनबर्ग शटडाउन हो गया पूरा एकदम. Are you understanding? So, the point that I'm talking about is during that controversy, Adani Enterprises were priced एकदम gravitationally low. अपने ये टाइप के सिचुएशन में क्या देखने का ट्राई कर रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, दिस बिकम्स क्लियरर, इट बिकम्स सिंपल, इट बिकम्स सिंपल, एंड वी आर एट द राइट साइड ऑफ द नरेटिव. क्लियर है?
Clear? Good. So the next one is connects. Of course, आपका network and everything कितना strong है. थर्ड पार्टी कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट आप देख रहे हो, नॉट ऑब्वियसली नॉट अ वेरी बिग रिसर्च रिपोर्ट, मैंने बट स्मॉल छोटा छोटा रिपोर्ट्स में भी आप काम कर सकते हो. सो आई जस्ट शो यू वन. वेट, हाँ, आई जस्ट शो यू वन. So this is the database that we use at our firm along with Vice Sheets. It's called Capital IQ Pro. तो Cap IQ Pro में you can go to research, you can go to investment and market research. यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो क्लियर कट. ठीक है, इंडिया में मेरे को देखना है एंड सपोज मेरे को जेफरीज का कोई रिपोर्ट देखना है. क्या टाइप का आपका रिपोर्ट चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट एन इंडस्ट्री का ओवरव्यू. क्लिक ऑन दिस. So clear cut, you get these prediction markets deep dive. Now you keep on reading these reports, automatically you get so much data, you get so much what's the TAM पूरा चीज में prediction markets में. ठीक है, what who are the top players, कौन से player का इंडिया से link है, everything you can get. And you can get it at like these reports, Jeffries ka report, JP Morgan ka report, these are very high quality reports that you can get. So obviously you cannot have that thing कि capital IQ का subscription में भी आपको currently नहीं मिल सकता है, but when you get to your company जहां पर आपको idea generate करना पड़ेगा, you will have access to these softwares. उसमें problem नहीं है. Even अगर आपको मैंने basic reports भी देखना है ना, you can simply search over here मनी कंट्रोल. ठीक है, एंड मनी कंट्रोल में यू कैन लुक एट से एनी कंपनी, से फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक. ओला इलेक्ट्रिक के बाद आप सीधा चले जाओ, देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन कॉल्ड या रिसर्च. सो sorry, okay, so we don't have a report over there, but let's talk about that thing, your big company. So the reason is I'm getting so many ads is because I'm not subscribed to money control per se. ठीक है, that is the reason it is happening. Say for example I give a Tata Motors. ठीक है, यहाँ से you go to research, तो सेल साइड जो है, राइट, यू गेट एवरीथिंग यहाँ से. या you get this entire report. Keep reading it, you will start generating patterns. Pattern recognition and dot connection is everything to equity research. ठीक है, so that is typically what we are talking about. आप अपना connects को build up करते रहो. ठीक है, I'll even show you this one thing as well, कि जो अपने बात कर रहे थे ना की डेवलपमेंट्स का. so in Cap IQ you also get a screener. ठीक है, स्क्रीनर में सपोज आई वांट टू स्क्रीन फॉर की डेवलपमेंट्स. की डेवलपमेंट कैन आल्सो बी कंपनीज जिन्होंने अपना गाइडेंस को इंक्रीज किया है. ठीक है, सो आई जस्ट टॉक अबाउट दिस. या कंपनी फोरकास्ट एंड रेटिंग्स, गाइडेंस रेज्ड. सो इट्स लास्ट वन डे, ऑब्वियसली लास्ट वन डे का बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 12 महीना में, एक साल में. तो एक साल में इन द एंटायर वर्ल्ड 2000 कंपनीज हैव अराउंड रेज्ड देयर गाइडेंस. ठीक है, मेरे को चाहिए इंडिया में कंपनीज जिन्होंने अपना गाइडेंस को रेज किया है. जस्ट टाइप इन इंडिया एंड डन. Six companies. I'll just run the screen. So have a look. I have these companies. Infosys, Actua, all these companies, they have increased their guidance. Exactly क्या की डेवलपमेंट है वो आप सीधा यहाँ से पढ़ सकते हो. ठीक है,
अब सपोज आपके पास कैप IQ जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है एंड यू वांट टू रन दिस स्क्रीन, ठीक है, फिलोसफी एंड स्क्रीन वगैरह जो है वो सीधा आप लोगों का ही होगा. सो व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज आप अपना पूरा ये अपना एक वॉच लिस्ट मेंटेन करो ना फॉर द कंपनीज, कॉन कॉल पढ़ते रहो एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट देयर. कॉन कॉल पढ़ते रहो एंड एक एक एक्सेल शीट में लिखते जाओ कौन सा कंपनी क्या अपना गाइडेंस इंक्रीज किया है. एन इंक्रीज इन गाइडेंस कैन बेसिकली बी अ साइन फॉर यू टू डिग अ लिटिल डीप. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बिल्ड योर ओन पाइपलाइन. लाइक अगर मैं अपना बात करूं, टुडे आई गेट अराउंड 15 to 20 ideas every day. People who are working in suppose big family offices, big or other some other places like say rare enterprises, वहां पर लोगों को 50 से 60 आइडिया तो मिलते ही रहते हैं एंड हाई क्वालिटी आइडियाज. एंड लास्ट में idea which is directly handed down by your senior, you are basically betting on your own analysis. खुद के एनालिसिस पे आप बेट करते जा रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक आइडिया दे दिया गया, आपको बोल दिया है कि आइडिया ठीक है, आपको स्निफ भी नहीं करना है, यू हैव टू डू अ ड्यू डिलीजेंस. जब आप ड्यू डिलीजेंस कर रहे हो, इनवेरिएबली यू आर रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट्स, you are reading con call, maybe you are using AI to automate the process, but करते करते you maybe stumble upon something, a different idea that okay, value chain में अगर ये कंपनी इतना बढ़िया कर रहा है, ठीक है, that might just warrant me to look at other companies who are ahead of this company in value chain or behind the this particular company in value chain. ठीक है. So that pretty much takes care of our idea generation. ठीक है. बताओ. अब वी विल डेफिनेटली शेयर द होल डेक, आपको रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो, बट दैट प्रीटी मच टेक्स केयर कि बेसिकली अपना डायमेंशनल पर्सपेक्टिव कैसे लगा सकते हैं इन आइडिया जनरेशन. बताओ, क्लियर है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो हाउ इज द सेशन बीन गोइंग सो फार? कैसा चल रहा है सेशन? हाउ इज द सेशन बीन गोइंग सो फार? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. चलो. So we discussed, yeah, we will share everything. That sheet is again into a particular development mode so that आप लोगों के लिए और थोड़ा easy हो उसको use करना. We will share everything. ठीक है, आज का एंड आपका पिछला दिन वाला जो शीट है, एवरीथिंग विल बी शेयर, डोंट वरी. ठीक है. तो जेनरेशन हो गया. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जेनरेशन के बाद अपने क्या करें. द थिंग इज वी टॉक अबाउट स्निफिंग. वी कॉल इट द FPDSR फ्रेमवर्क. स्निफ का मतलब क्या होता है? सूंघ के एक बार देखना कि इज अब द कंपनी साउंड. गिवन दैट वी हैव अ लॉन्ग मैंडेट, मैं अपना मैंडेट का ही बात कर सकता हूं, मेरा मैंडेट इज लॉन्ग एंड लॉन्ग जाने के लिए इन इंडियन मार्केट आई नीड टू बी स्ट्रक्चरली लॉन्ग. स्ट्रक्चरली लॉन्ग का मतलब क्या है? गोइंग फॉरवर्ड मेरे को चाहिए कंपनी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करे, कंपनी कुछ फंडामेंटल चेकलिस्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करे. दैट इज प्रीटी मच व्हाट आई एम लुकिंग इनटू. नाउ क्यों, माने व्हाई इज इट द केस? बेसिकली सी, इफ यू आर स्टडिंग, ठीक है, सपोज स्कूल का एग्जाम है, ठीक है, स्कूल का एग्जाम क्लास 12th का एग्जाम है, आप पढ़ रहे हो, आपने सपोज पढ़ाई कुछ नहीं किया लेकिन चीटिंग करके या फिर लक बाय चांस से आपका पूरा 90 परसेंटाइल में मार्क्स आ गया. इंटरनली एक्सटर्नली तो द वर्ल्ड इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, यू आर वेरी हैप्पी ऑन द फेस ऑफ इट. इंटरनली आपको भी पता है आपने पढ़ाई नहीं किया था, सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल. सिमिलरली सपोज CFA का पढ़ाई आप कर रहे हो, ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव अ 33% चांस ऑफ गेटिंग इट राइट. सपोज आपका लक पूरा वो कौन सा मूवी था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जय माता दी वाला चल गया, यू डोंट हैव अ कंसेक्यूटिव मिस्टेक पेनलाइजेशन, यू डोंट हैव अ नेगेटिव मार्किंग, बट आपका लक चल गया सीधा. ये अगर चल गया तो आप सपोज पास तो हो गए, लेकिन यू नो कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं किया था, लेवल 2 में ये नहीं होने वाला है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ लक इज दैट इट इज नॉट रिपीटेबल. गो फॉर स्किल. ठीक है. तो मेरे को चाहिए मेरा जो कंपनी है वो बहुत ऊपर चला जाए. इफ इट इज सपोर्टेड बाय फंडामेंटल्स देन आई एम परफेक्टली फाइन विथ इट, बट इफ नॉट आई एम नॉट फाइन विथ इट. So when I say it is supported by fundamentals, I need
answers to 5 simple questions. Can I trust what's in front of me? Forensic analysis. In CFA level 2, I don't remember whether it was in CFA level 1 as well. In CFA level 2, we had studied something called report quality, something called result quality. I think it was in FRA. हम लोगों का टाइम पे उसको FRA बोला जाता था, Financial Reporting and Analysis. Currently, it is called FSA, Financial Statement Analysis. There was a chapter called Financial Reporting Quality. In that chapter, I had studied there's something called report quality, something called result quality. Suppose आपका रिपोर्ट का क्वालिटी इज हाई, रिपोर्ट क्वालिटी इज गुड, बट आपका रिजल्ट का क्वालिटी जो है वो लो है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. रिपोर्ट क्वालिटी हाई, रिजल्ट क्वालिटी हाई, तो बहुत ही बढ़िया बात है. बट अगर आपका रिपोर्ट का ही क्वालिटी ठीक नहीं है, आई कैन नॉट सी, आई जस्ट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द नंबर्स. If my report quality is not good, it does not matter what my result quality is. ठीक है. So I need to understand कि मेरा जो result quality है, correct, मेरा जो report quality है, I can trust the numbers because results तो कुछ भी दिखाया जा सकता है ना. Bad quality report क्या होगा? Fictional earnings मैंने दिखा दिया, उससे मेरा result quality बहुत improve हो गया, but वो तो पूरा ही fictitious ही है ना. So I need to do, the first pillar is forensics. Can I trust what's in front of me? Second, जो बिजनेस है, once I am okay, ठीक है, तो मैं नंबर्स को ट्रस्ट कर सकता हूं. Once I am okay, the immediate next thing that comes to me is the business profitable? Profitability is the second pillar. मेरे को देखना है क्या धंधा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं. Immediately when we see that there is profitability, ठीक है, the next thing what happens is that कि competitors आएंगे, competitors आके मेरा पूरा सीधा profit जो है वो खा जाएंगे. So the third pillar is logical defensibility. Can the profits be defended? ठीक है, profitability, defensibility. ठीक है. अब suppose, तो basically मैं जानने का ट्राई कर रहा हूं कि क्या मेरा barrier to entry high है. If my business is profitable, I need to understand whether my barrier to entry is high. सपोज आज मेरा रिपोर्ट क्वालिटी इज गुड, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड एंड माय बैरियर टू एंट्री इज हाई, बट आई डोंट हैव इनफ री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो इन दैट केस तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना. सो स्केलेबिलिटी इज द फोर्थ पिलर कि कैन इट ग्रो फर्दर, राइट. एंड लास्ट में वी हैव दिस वन पैरामीटर कॉल्ड रेजिलियंस कि डाउनटर्न जब होगा, डज इट हैव इनफ कैश, डज इट हैव लो डेट सो दैट इट कैन सर्वाइव. This is the SNIF framework that we use in our organization. बताओ, is it clear? Forensics, profitability, defensibility, scalability, resilience. Clear है? Is it clear? Good. Perfect. This is pretty much what we see. Can I go deep? This is the answer that I'm looking at. So, फोरेंसिक्स के लिए मेरे को एक बेसिक टेस्ट अगर करना है, दैट इज आई नीड टू फॉलो द कैश. कैश को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है. कैश जस्ट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड गिवन व्हाटएवर इज द आर द रेगुलेशंस राइट नाउ. सो अकाउंट्स जो है उसको जितना हो सके उतना मैं कुक कर सकता हूं, बट कैश को आप कैसे ही कुक करोगे, ठीक है. मैंने सत्यम वाला केस एंड ऑल मैं नहीं बोल रहा हूं, बट generally you cannot manipulate cash. So for forensics मेरे को देखना है cash component high है नहीं या नहीं. For profitability I cannot say that say margin is high or say return on capital is high. Obviously profitability का सबसे बड़ा जो ये पैरामीटर होता है, ठीक है, वो return on capital ही होता है. It may be return on invested capital, may be return on equity. रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर मैं डूपॉन्ट में उसको तोड़ता हूं तो मेरा बेसिकली टर्नओवर भी आ गया, मेरा मार्जिन भी आ गया, मेरा लेवरेज भी आ गया, ठीक है. So profitability I need to understand. I cannot just say कि say a 15% ROE or a 15% ROCE or ROIC is high. Optically high नहीं, मेरे को देखना है over and above cost of capital कितना high ROIC है, ठीक है. I need to know the spread. Third pillar is defensibility. इसमें I do a moat check. So we have certain parameters जिसके basis पे अपने moat को check करते हैं. I'll just show you the Excel. The fourth is scalability, ठीक है, कि मेरा जो रनवे फॉर ग्रोथ है, ठीक है, रनवे फॉर ग्रोथ, मोर अपॉर्चुनिटीज, टैम का साइज क्या है, टैम का ग्रोथ रेट क्या है, दैट वे वो हाई है या नहीं. एंड लास्ट में रेजिलियंस में वी जस्ट सी स्ट्रेंथ, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, ठीक है. सो दीज आर व्हाट वी लुक एट.
सो या दिस वाज द सेकंड लास्ट स्लाइड। आई एम गोइंग टू नाउ शो यू द एक्सेल। तो मैं यहाँ पर बैठ के फिल नहीं करूंगा, एस का मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है, ठीक है ना। हैव अ लुक, दीज आर सम ऑफ द अजम्पशंस जो आपको हैंड से फिल इन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द पैरामीटर्स जो आपको फिल इन करना पड़ेगा। वंस यू डू दैट, उसके बाद अपने क्या करेंगे ना, अपने एक एक का स्कोरिंग करने का ट्राई करेंगे, looking at these veto flags. So this particular analysis, ठीक है, it's not just a pure quantitative analysis. अपने को ये भी देखना है कि qualitatively ये सारा भी satisfy कुछ हो रहा है या नहीं। These are major veto flags. इनमें से अगर कुछ भी yes हो गया तो गया, एकदम क्लियर कट, किल दी आइडिया, नहीं चाहिए भाई। हैव अ लुक, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट वीटो फ्लैग्स। अगर ऑडिटर रिजाइन कर दिया और लास्ट 3 साल से क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है, ठीक है, एंड इश्यू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको इसको टर्न टर्न करना है टू अ यस और नो, ठीक है ना। सपोज कोई रेगुलेटरी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है, प्रोमोटर अपना शेयर जो है वो सिग्निफिकेंट प्लेज करके रखा है, सीएफओ जो है वो नेगेटिव है फॉर द लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या, ग्रेटर देन माने 2, माने 100% के ऊपर नेगेटिव है, एंड रिसीवेबल डेज इज दिस हाई, करीब 6 महीना के ऊपर कंपनी का कैश रियलाइज नहीं होता है। ये सब अगर कुछ भी है, सो सिंपली किल द आइडिया। देन आई एम गोइंग टू सिंपली फिल इन दीज डेटा शीट्स, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देन अपने क्या करेंगे, दिस इज द मेन थिंग, फोरेंसिक्स, प्रॉफिटेबिलिटी, डिफेंसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रेजिलियंस, वीटो रूल्स, ठीक है, सारा कर कुरा के आई एम बेसिकली स्कोरिंग दीज। स्कोरिंग मैकेनिज्म इज ओवर हियर, ठीक है। आउट ऑफ 100 मैं स्कोर कर रहा हूं, फॉर एवरी पिलर आई एम गिविंग 20% वेटेज। यू कैन प्ले अराउंड विद दीज वेटेजेस, ये पूरा शीट शेयर किया जाएगा, डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। तो ये 20 20 20 20 20 करके सारा वेटेज एंड ऑल वी आर गिविंग, ठीक है। उसके बाद वी आर सीइंग कि 20% करके वेटेज दे रहे हैं, एंड स्कोर जो है आप देख लो, फोरेंसिक्स को आउट ऑफ 20 कितना स्कोर मिल रहा है इस कंपनी को, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी में कितना स्कोर मिल रहा है, डिफेंसिबिलिटी में कितना स्कोर मिल रहा है, स्केलेबिलिटी में कितना स्कोर मिल रहा है, एंड रेजिलियंस में कितना स्कोर मिल रहा है, ठीक है। ये सारा करके स्कोर्स का एक वेटेड एवरेज करके एक पर्टिकुलर स्कोर आता है। सो दिस कंपनी इज गेटिंग 82। कोई भी वीटो फ्लैग अगर यहां पर ट्रिगर हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्रिगर दिस वन वीटो फ्लैग, हैव अ लुक, सिंपली किल द आइडिया, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। So we have 3 conditions. Suppose it comes to around say 70 forcefully अगर मैं लिखता हूँ, so we have a park condition, ठीक है। veto rules trigger नहीं होना चाहिए, suppose this rule is triggered, ठीक है, simply kill the idea. So this one particular sniff test, ठीक है, it is not the only test out there, माने there can be multiple, but अपने organization में, अपने ऑफिस में जो काम करते हैं वो इससे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इट्स जस्ट दैट मैंने अपने एक जूनियर को बोला था कि कैन यू जस्ट मेक, जो हम लोग करते हैं उसका एक बेसिक ऑफशूट बना सकते हो क्या, सो दैट आई कैन शो इट टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस कैन डेफिनेटली बी शेयर्ड, यू कैन प्ले अराउंड विद द इनपुट। आई विल जस्ट शो यू मोड चेक में क्या होता है। सो 3 स्कोर में से अपने को देना है 1 0 1 और 2, और यहां पर अपने को आपका रीजनिंग लिखना है। सो लोग जो बोलते हैं ना कि सर इक्विटी रिसर्च जो है वो अपने करे कैसे, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी लुकिंग एट, डू अ रिसर्च ऑन दीज थिंग्स ना। देखो बेसिकली आज अपने बात कर रहे हैं स्विचिंग कॉस्ट क्या कंपनी का हाई है, सो एस का वी हैव डिस्कस्ड, it has got a huge distribution dealer network, turnaround time is lower than 24 hours. If you want to write further why is it a switching cost and why is it so important, you can keep on writing further, ठीक है। सिमिलरली जहां पर मेरे को नहीं समझ में आता है कि नेटवर्क इफेक्ट कंपनी का है या नहीं, आई नीड फर्दर रिसर्च, तो मैं जब रिसर्च करने बैठूंगा मेरे को ये वाला चीज को रिसर्च करते रहना पड़ेगा। सपोज आई अंडरस्टैंड कंपनी का बहुत हाई नेटवर्क इफेक्ट्स बेनिफिट्स है, तो मैं इसको सीधा 2 कर दूंगा, राइट, एंड एवरीथिंग। तो मेरा यहां से स्कोर जो है वो इंप्रूव होते जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो इसी तरीके से होता है, यू कीप स्कोरिंग। सपोज यू वांट टू ऐड मोर पैरामीटर्स, ठीक है, एंड यू वांट टू मॉडिफाई दिस, यू कैन डेफिनेटली एंड रादर यू शुड डू दैट, बिकॉज दिस इज जस्ट 10% ऑफ व्हाट वी डू इन आवर ऑफिस, ठीक है ना। एक स्निफ टेस्ट करते करते ही 3 से 4 घंटा सीधा लग जाता है आपका, ठीक है। सो आई जस्ट शो यू सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। तो अपने चाहते हैं कि द CFO टू पैट का जो रेशियो है, ठीक है, CFO टू पैट का रेशियो, वो इफ इट इज हायर देन से 100% वी गिव अ स्कोर ऑफ 5,
If it is lower than 100% and if it is suppose between if it is higher than 80%, ठीक है, 100 से 80 के बीच में होता है तो 3, इफ इट इज ग्रेटर देन 60% यू गिव 1, अगर 60% के भी नीचे है देन सिंपली यू गिव 0. इसी तरीके से एवरीथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड. अगेन इफ यू सी आरओआईसी का एवरेज 3 साल का, डब्ल्यूएसीसी जो है दैट इज समथिंग वी हैड कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस क्लास इफ यू रिमेंबर. 11.51% वाज व्हाट वी आर लुकिंग एट. ठीक है, that the margins coefficient of variation of gross margin, ठीक है, all that माने एक तरह से what we are talking about is कि we are looking at gross margin का CV कितना है. डिफेंसिबिलिटी में अगेन जो मैंने बोला मोट चेकलिस्ट जो है इससे सीधा स्कोर यहां पर आ रहा है. ठीक है, जितना आपका स्ट्रॉन्ग मोट 0 से 20 के बीच में आपका उतना स्ट्रॉन्ग स्कोर. स्केलेबिलिटी का अगर अपने बात करें तो यहां पर जो फिगर है आपको खुद से डालना पड़ेगा. ठीक है, आउट ऑफ दिस वन थिंग 6 आप कितना देखो दोगे उसको. सो इफ वी हैव अ फास्टर टैम ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर ऑब्वियसली वी हैव अ वाइड रन अवे. राइट, कि अगर आज मेरा सपोज टैम जो है वो बहुत बड़ा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और वो बहुत हाई रेट से ग्रो कर रहा है और मेरा मार्केट शेयर इज लो, लेकिन मैं मार्केट शेयर को बढ़ाते जा रहा हूं, सो ऑब्वियसली मेरे को तो बहुत स्कोप है ना लोगों से मार्केट शेयर छीन के ग्रोथ को राइड करने में. अंडरस्टैंडिंग. नाउ आई हैव गिवन मोमेंटरीली इट एज 3 बिकॉज एक तरह से एस का मार्केट शेयर इज वेरी हाई इन द क्रेन मार्केट. ठीक है, एंड द मार्केट इज, आई विल जस्ट शो यू, मोर और लेस करेंटली ग्रोइंग एट अराउंड 11%. ठीक है, मार्केट शेयर जो है वो आप यहां पर लिख दो एंड दिस यू हैव टू डू क्वालिटेटिवली ओनली. ठीक है ना. सो वी हैव अ रनवे, ठीक है, मोर और लेस मीडियम रनवे. ठीक है, एंड री इन्वेस्टमेंट रेट जो है ये कैलकुलेट आपका हो जाएगा फ्रॉम द इनपुट्स दैट आई यू हैव प्रेजेंटेड. री इन्वेस्टमेंट रेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आज आप जितना कमा रहे हो उतना उसका कितना परसेंट री इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, so you are reinvesting around 52% and sales to reinvested capital is 3.2. For every dollar you are reinvesting you are generating 3 का sales. ठीक है, huge sales आप generate कर रहे हो, more than most of your profits you are reinvesting, and आपका जो profitability है you have a very good spread of reinvesting. ठीक है ना. This is how a thesis is formed. फंडामेंटली आप एक तरह से कंपनी को किस तरह से एनालाइज करोगे, कैसे कैसे आप एक एक कंपनी के बारे में लिखते जाओगे. फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरी सिंगल से CFO टू पैट मीडियन 3 years, ठीक है, हायर द बेटर. तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, इज द CFO टू पैट शोइंग अ हेल्दी ट्रेंड. ठीक है, तो यहां पर आई कैन सिंपली क्लिक ऑन, यहां पर आई कैन सिंपली क्लिक ऑन राइट क्लिक और यहां पर आई कैन सिंपली गिव अ नोट. राइट, तो यहां पर मैं नोट दे सकता हूं व्हाट इज द रीजन, एंड इससे क्या होगा, आई कैन ऑलवेज कम बैक टू माई नोट्स एंड आई कैन काइंड ऑफ गेट अ सेंस कि बेसिकली यहां पर व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर. सारा नोट्स को लेकर के यू कैन पुट इट इन अ प्लेट फाइल एंड यू कैन हैव अ बेसिक क्विक डाइव ऑन द कंपनी. एंड डीप में जाना है तो ऑब्वियसली यू कैन गो एज डीप एज पॉसिबल. So we have debt EBITDA in the resilience, interest coverage, current ratio and top customer percentage of sales. कि अगर मेरा top customer if he represents say 60% of my entire sales, then तो effectively जिसको अपने monopsony बोलते हैं वही है ना, that customer is simply going to be on my shoulders. If he leaves, I'm done for. ठीक है, so that is pretty much what we are looking into. यहाँ पर you can keep on and change the ticker because vice sheet से मेरा दिया हुआ है. राइट, सो बिकॉज मेरा लॉग इन नहीं किया हुआ है दैट इज द रीजन दिस वाज हैपनिंग. ठीक है, या आई जस्ट नीड टू लॉग इन वंस. राइट, so Larsen and Toubro everything comes in. I have a park for this company and that's pretty much it. All automated. ठीक है, I'll stop the share and most likely we will end the session over here, and before that if anybody wants to say something so I'll just allow that person. Batao, somebody wants to say something? Guys, you can raise your hand.
Okay, Kailash wants to say something. Hi, Kailash. Hi, Hello, sir. Kailash. Hello, sir. Hi, Kailash. Tell me. My voice is audible, sir? Yeah, yeah, Audible? yeah. You are audible. Go ahead. Sir, I have a doubt. Mm-hmm. If sir, if my TAM total addressable market is high Mm-hmm. and my market share is also high, Okay. so is it a warning sign or a good sign? Depends again. See, if your TAM is big and your market share is also big, so effectively you are a market leader. Right? दैट मीन्स आपका मार्क आपको देखना क्या है कि आपका जो मार्केट है ना वो कितना रेट से ग्रो कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग? Okay. At what rate is the TAM growing? Suppose the TAM is growing at say a very low rate, effectively talking about a matured market. So in that case, आपको उस कंपनी को किस लेंस से देखना चाहिए? You should look at that company from the lens of a matured company, and आपका play in that case होना चाहिए a pure dividend play. क्या कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, एंड क्या कंपनी डिविडेंड जोर का देगा? सो दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर वेरी गुड फॉर डिविडेंड इन्वेस्टिंग. Okay, sir. Clear? Great. Yeah. Somebody else? Anybody else? Okay, somebody is saying, sir, con call कैसे पढ़े? Okay, okay. So I'll just answer this once again. Basically, I think मैंने last to last class इसको answer किया था थोड़ा बहुत. See, the end of the day, समझो guys एक चीज. मैंने what is my objective? If my objective is to make a video on YouTube, as in how to read a con call, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कॉन कॉल खोल लूंगा, खोल के उसको पढ़ लूंगा, पढ़ने के बाद मैं उसका बेसिकली A to Z चार्टिंग जो है वो कर लूंगा. ठीक है कि पहले कौन क्या बोलता है, फिर एनालिस्ट लोग क्वेश्चन करता है, लोग आंसर करता है. दैट्स ऑल ओके. बट द थिंग इज, इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एनालिस्ट, ठीक है, यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, then you can't just start open and read con calls. Now of course the way to get better at reading con calls is to read more and more con calls, but पढ़ने से पहले you should have certain frameworks in your mind. So if I were to ask of you, जो mental models है, ठीक है, mental models जो है, एक typical mental model क्या होता है? ऑन ग्राउंड ऑपरेशन अगर कोई कंपनी का होता है, माने बेसिकली कंपनी को से फॉर एग्जांपल पेंट करवाना है, से पेंट सेक्टर के कंपनी से कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये टाइप के कंपनीज का ऑन ग्राउंड ऑपरेशन होता है. तो टेल मी समथिंग. कॉन कॉल एवरी क्वार्टर होता है, साल में 4 क्वार्टर है, Q1, Q2, Q3, Q4. क्वार्टरली परफॉर्मेंस, ये चारों जो क्वार्टर्स है, ठीक है, गिवन दैट अपना ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है. सो Q1 इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 वट एवर 25. कौन सा क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट? कौन से क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट? टाइप इन. वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी. In which quarter? Okay, Swagato. Yeah, I think you were there in the last session. No, Harsh, it is not Q4. Anybody else would want to try? Absolutely. Answer is Q2. Absolutely, absolutely. So I'll just ask Deven to tell me, were you in the last session? क्या आपको ये पता था पहले से? बताओ, या फिर आपने पढ़ पढ़ के अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाया था? Were you in the last session, Deven? Were you in the last session, Deven? Okay. So the thing is, Q2 is always going to be the worst quarter for on ground operations. What is the reason? Because of monsoons. ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. Q2 में मॉनसून्स के कारण, मॉनसून्स के रीजन के कारण, बिकॉज Q2 में क्या होता है ना,
आपका Q2 स्टार्ट होता है फ्रॉम जून, ठीक है। Q1 अगर स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल में जून, ठीक है। Q2 आपका कब से शुरू होता है? आपका शुरू होता है फ्रॉम से जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। ये 3 क्वार्टर में हमेशा बारिश होगा, as a result of which construction activity will be halted, as a result of which paint activity will be halted, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस आप देखोगे Q2 का नंबर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी बैड, एंड Q3 का जो रिजल्ट्स आएगा, नंबर्स आएगा, दे विल ऑब्वियसली बी द बेस्ट। रीजन बीइंग दैट एक तो है लोअर बेस से आप नंबर पुल अप कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज Q2 में बहुत खराब चला गया तो द बेस श्रंक एंड यू पुल्ड अप नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम दैट बेस, तो आपका ग्रोथ मैथमेटिकली हाई दिखा रहा है। सेकेंड, Q3 में फेस्टिव सीजन भी होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस योर माने यू हैव दिस फ्रेमवर्क। नाउ इफ यू स्टार्ट understanding even before opening a single con call, you know this कि basically मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ईच एंड एवरी सिंगल टाइम एवरी सिंगल मैनेजमेंट इज गोइंग टू से Q2 में बिकॉज इट केप्ट ऑन रेनिंग बिकॉज ऑफ द मॉनसून्स आवर नंबर्स वेर म्यूटेड, ऑल द टाइम दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड Q3 में वो लोग गाइडेंस को फिर रिवाइज करेंगे। Are you understanding? So this is the state of affairs. तो मैनेजमेंट जो अपना बात होता है, so you people know this, right? Behavioral finance में we had something called that self attribution bias. Overconfidence में self attribution bias. That is, if it is something good, if something good happened, it happened because of me. If something bad happened, some other factor was responsible. तो यही तो बात कर रहा है ना मैनेजमेंट। यू ओपन एनी कॉन कॉल, एस का कॉन कॉल खोल के उठा के देख लो, लार्सन एंड टुब्रो का, एशियन पेंट का कॉन कॉल उठा के देख लो, यू विल सी द सेम पैटर्न फॉलोइंग आउट। दैट इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपेयर नंबर्स ऑन अ YOY बेसिस कि लास्ट ईयर के Q2 वर्सेस दिस ईयर के Q2 में व्हाट वेर योर नंबर्स, राइट? एग्जैक्टली। तो दैट इज टिपिकली व्हाट आइडियली यू शुड बी डूइंग। पहले आप अपना एनालिसिस बेसिक करके रखो, हैव योर फ्रेमवर्क, एंड देन स्टार्ट रीडिंग द कॉन कॉल्स। देखो कौन से एनालिस्ट ने बेसिकली क्या बोला हुआ है वहां पर, ठीक है, विच एनालिस्ट पोज्ड दैट क्वेश्चन। रादर आई वुड सजेस्ट इफ पॉसिबल आप कॉन कॉल कुछ ज्वाइन भी कर सकते हो, एंड यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क द मैनेजमेंट विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेमवर्क। सो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन। There was this con call of a company and there was a particular analyst, not naming him, but he posed excellent questions to the management. So network मैंने अपना कैसे बनाया यहाँ पर, I connected with that guy on LinkedIn and I just told him कि your questioning, line of questioning over here was extremely good. He said we can connect for a discussion on that company. तो वहां पर उसके फर्म का जो insights है that we are discussing about that particular company, इससे मेरे को कितना ज्यादा इंसाइट मिलते जा रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो कॉन कॉल कैन ऑल्सो बी अ सोर्स फॉर यू गाइज टू सिंपली कनेक्ट विद पीपल, रीड अ लॉट, अंडरस्टैंड, हैव मेंटल फ्रेमवर्क्स। वही मैं बोल रहा हूँ, मेंटल मॉडल्स दिमाग में रखो। अब सीजनैलिटी कंपनीज जो होता है, सीजनैलिटी कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कंपनीज, वहां पर दिवाली में हमेशा डिस्काउंट दिया ही जाएगा। दिवाली में डिस्काउंट दिया जाएगा तो मार्जिन थोड़ा डिप होगा, बट वॉल्यूम इज गोइंग टू आउटपेस। ऑब्वियसली कम जो मैनेजमेंट है वो कॉन कॉल में क्या बोलने वाला है आपको ऑलरेडी पता है, right? So these are some of the frameworks that you guys can definitely use, ठीक है। So yeah, that is again pretty much what it is. So I guess you people were more or less satisfied, ठीक है। अगर बोलूं एक बार सेशन को रेट करने के लिए, would you do that out of 10? Okay, thank you so much. Great. I'm really glad that you guys liked it. This was my last session, ठीक है, और इसके बाद sessions नहीं होगा। And yeah, so if somebody wants to say something, you can just raise your hand, ठीक है। I think we've been doing around 5 sessions. So we started with setting the infrastructure. We went into a buy side model, then we went into a sell side model, then we understood valuation का क्या lens है, and today it was more or less about idea generation and sniffing, ठीक है। Okay, apologies, Devin. We are not taking interns right now. Okay, Kailash wants to say something. Yeah, please go ahead, Kailash. You're audible.
या सर, एक मेरे को ये भी जानना था कि अगर सर हम लोग को ये कंपनी नहीं, जैसे कोई सेक्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हम्म। हमें कोई हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है जैसे। हेलो सर। या यू आर ऑडिबल, गो अहेड। आप कॉमर्स हाँ, बैकग्राउंड से हो? और अगर सर हम लोग को जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स और ये सारे सेक्टर्स हम लोग पढ़ना चाहते हैं, मतलब हम्म। सो सर, मतलब इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे वो कोई अगर एलिमेंट्स और ये सब बोलते हैं जिससे हम लोग को ये चीज़ से मतलब कौन कौन और पढ़ते हैं हम लोग, उसका तो समझ में नहीं आता ज़्यादातर। हम्म। तो उसके लिए अगर कोई एडवाइस। Yeah, definitely. It's a very good question and it's also relevant for a lot of people because जब मैं पढ़ने को आया था, when I started with my journey, so I faced something similar. So during that time, we did not have this AI वाला जो stuff है, ठीक है? So what we used to do was we used to read a lot of sector primers. सेल साइड जो होता है ना, सेल साइड, आप अगर कोई कंपनी में जाते हो, बी इट अ बाई साइड और अ सेल साइड, इफ इट इज अ बाई साइड, आपका मल्टीपल सेल साइड चैनल्स तो होगा ही, ठीक है? मल्टीपल सेल साइड चैनल्स, फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल इज अ सेल साइड चैनल, फॉर एग्जांपल से सम अदर कंपनी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग समथिंग, से एचडीएफसी सिक्योरिटीज इज अ सेल साइड चैनल। ये लोग क्या करते हैं ना, एक एक इंडस्ट्री के ऊपर एक प्राइमर देते हैं, ठीक है? प्राइमर का मतलब क्या होता है, आप अगर उसको, इट्स आई थिंक मोस्ट लाइकली इट्स अ 30 to 50 पेज डॉक्यूमेंट, वो सेक्टर के बारे में, फॉर समबडी हु इज नॉट एजुकेटेड अबाउट दैट सेक्टर, वो सेक्टर के बारे में आपको पूरा सिंपल लैंग्वेज में एडुकेट कर देता है। सो यू विल बी फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजीज एंड एवरीथिंग, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन दैट आपको सेक्टोरल ट्रेंड्स, व्हाट ड्राइव्स दैट सेक्टर, मार्जिन कैसे डिराइव होता है, ठीक है? सो ऑल दैट जो स्टफ है, ठीक है ना, वो सारा जो चीज है वो आपको देता रहे, मैंने वो बहुत हेल्प कर देता है। अब सिंस इन द एरा ऑफ जीपीटी, व्हाट वी डू इज दैट, सपोज देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्टर जो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, आई एम गोइंग टू सिंपली यूज डीप रिसर्च इन चैट जीपीटी एंड आई एम गोइंग टू आस्क इट टू जनरेट अ सेक्टर प्राइमर फॉर मी, एंड आई एम गोइंग टू टेल दैट जीपीटी कि यार ये मेरा रिक्वायरमेंट्स है, टेल मी द रेवेन्यू ड्राइवर्स, टेल मी द यूनिट इकोनॉमिक्स, टेल मी दीज टर्म्स, एक्सप्लेन दीज टर्म्स टू मी इन प्लेन इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग। सो दैट यस। इज प्रीटी मच व्हाट वी डू। तो अभी के टाइम पे ये जो बात होता है ना, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड कि मेरे को तो यार ये टर्म समझ में नहीं आता है। यू हैव जीपीटी, यू हैव टू रिसर्च, it takes time, it takes maybe a week for you to get acquainted with practically everything out there, but yeah, this is what it is. ओके, थैंक यू सर All the फॉर best. गाइड। Somebody else, कोई कुछ पूछना चाहता है? Does anybody want to speak? How do I connect with you on LinkedIn? Simple request page दो, I'll accept. उसमें क्या प्रॉब्लम है guys? Okay. Want to intern at your company with, अरे नहीं नहीं, we are not taking interns right now at all. ठीक है, we are a closed group ना, family based company, so we are not taking interns. Apologies Devin, but definitely अगर अपने लेते तो I would have definitely considered you the same. Chalo, thank you so much. It was really great having you guys on board, and thank you so much for staying till the end. I hope you guys really liked the session because मेरे को यार लेने में बड़ा मजा आ गया, ठीक है? So let's conclude, and of course all the best for everybody who has given who has cleared their CFA level 2, level 3 भी अच्छे से ही आप लोग क्लियर करोगे। चलो, बाय बाय।